اس ناول کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ وہ سب کے ساتھ عام سے انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ زرش کی طرف کوئی خصوصی توجہ نہیں تھی، مگر اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ اس کے ارد گرد موجود ہے، وہ اسے دیکھ سکتی ہے۔ آنکھوں کی روشنیاں اس کی مرہون منت مزید بڑھ سکتی ہیں۔ سماعتوں کی فضا خواب خواب ہو سکتی ہے، خواہ وہ کسی اور سے ہی بات کر رہا ہے، کوئی اور ہی موضوع زیر بحث ہے۔ زوار بھائی نے اس کی تعریف کی۔ بھائی آج تو لگ رہا ہے کہ مغلیہ داستان کا کوئی کردار زندہ ہو کر یہاں آ گیا ہے۔ وہ ان کی تعریف پر سرخ سی ہو گئی۔ نظریں آپ ہی آپ تھوڑی دور کھڑے زیات پہ جا ٹکی۔ بس وہی لمحہ قاتل لمحہ تھا۔ آپ ہی کی نظروں نے بھی اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ پھر جب لوٹیں تو وہ یوں ہی کھڑی تھی، چہرے پر ڈھیروں رنگ اور آنکھوں میں جھلملاہٹیں لیے۔ آپ ہی کی صدا کی فطرت پل میں ساری بات سمجھ گئی۔ آہستگی سے اس کے قریب آئیں، نامحسوس طریقے سے اس کا کندھا ہلایا۔ ہیلو، کہاں کھو گئیں بھائی؟ اب اس قدر بھی حسین نہیں میرا دیور۔ ان کا مسکراتا لہجہ، اس قدر واضح جملہ اس کے حواسوں پر بجلی گرا گیا۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں بہت ہی پیارا سا ناولٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے میری زندگی ہے تو۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سے ناولٹ کی طرف۔ زرش، آپ ہی اسے پکار رہی تھی۔ جی آپ ہی، اس نے ہلکے سے ہانک لگائی۔ ذرا ادھر آؤ۔ آپ ہی کی آواز پر آنچ ہلکی کر کے چائے کی دیگچی ڈھانپی اور باہر نکل آئی۔ ابھی ذرا دیر پہلے انہوں نے اسے کچن کی طرف روانہ کیا تھا اور اب پکار رہی تھی۔ جی کیا بات ہے؟ پکوڑیوں کے لیے بیسن پھینٹتے ہوئے وہیں چلی آئی۔ تمہیں سوٹ دینا تھا۔ انہوں نے پاس رکھا شولڈر بیگ اٹھایا جس میں وہ دنیا جہان کی چیزیں رکھ کر لائی تھی۔ بقول سعد، آپ ہی کا بیگ تو عمر و یار کی زنبیل تھا، کب سے آئی ہوئی ہوں خیال ہی نہیں رہا۔ اس وقت بھی انہوں نے بڑی اور کریزی کے بعد رائل بلو کلر کا خوبصورت سوٹ نکالا اور اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس کے پاس رکھ دیا۔ یہ سوٹ؟ مگر کیوں آپ ہی؟ یہ تو آپ کا ہے۔ سوٹ دیکھ کر کچھ ٹھٹک سی گئی۔ تو کیا ہوا؟ تمہیں کس قدر پسند تھا؟ میں نے سوچا میں نے تو اتنا پہن دیا ہے، اب تم استعمال کر لو۔ آپ ہی کا انداز ہمیشہ کا لاپرواہ اور سرسری تھا، اس سے سخت ناگوار گزرا۔ نہیں آپ ہی، شکریہ، اسے آپ ہی رکھیں۔ ناگواری کے تاثرات چھپاتے ہوئے اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ کیوں بھائی؟ آخر میں تمہیں دے رہی ہوں۔ وہ متعجب تھیں۔ رکھ لو بیٹا، بڑی بہن کو انکار نہیں کرتے۔ امی جو کہ ابھی تک خاموش بیٹھی تھیں، آپ ہی کی حمایت میں بولی تو اس نے بڑی شاکی نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ ماں تھی، اس کے مزاج کو سمجھتی تھی، پھر بھی ہمیشہ آپ ہی کی بے تکی بات پر ان کا ساتھ دینا ان کی عادت تھی، جس پر زرش گھنٹوں کٹتی۔ نہیں آپ ہی، مجھے ضرورت نہیں۔ باوجود کوشش کے اس کا لہجہ روکھا ہو گیا۔ آپ ہی نے ایک سیکنڈ رک کر اس کا چہرہ دیکھا، پھر ہنس کر بولی، اچھا اب میں سمجھی، تمہیں اس بات کی ناراضگی ہے جب یہ نیا تھا تو تم نے مجھ سے خریدنا چاہا تو میں نے تمہیں انکار کر دیا تھا، اور اب استعمال کی بات دے رہی ہوں۔ ان کا تجزیہ بالکل درست تھا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا، جس کا آپ ہی نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مگر کیا ہوا میری جان، میں بھی تو تمہاری بہن ہوں، کوئی علیحدہ ہوں تم سے؟ میری ہر چیز تمہاری چیز، میں نے پہنا یہ تم نے، ایک ہی بات ہے۔ تم اس پہ دل پر نہ لو۔ وہ اسے بچوں کی طرح چمکار رہی تھی۔ دل تو اس کا چاہا کہ کہہ دے، یہ بات تو آپ بھی اس وقت سوچ سکتی تھی، مگر کچھ بول نہیں سکی۔ امی کی موجودگی میں خاموش رہنے میں عافیت تھی۔ نہیں آپی، ایسی بات نہیں، بس اب مجھے ہی پسند نہیں رہا، آپ فائزہ کو دے دیجیے گا، اس نے دو ٹوک لہجے میں انکار کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا دینے دلانے کی بات ہو رہی ہے؟ ہمیں کس نے یاد کیا ہے؟ عین اسی لمحے فائزہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی اور حسب سابق دروازے سے سر اندر ڈالے حاضرین سے دریافت کر رہی تھی، او بیٹا فائزہ، ابھی ہم تمہیں ہی یاد کر رہے تھے۔ امی نے شفقت سے فائزہ کی طرف دیکھا اور اسے اندر بلا لیا، اور دیکھیے کہ میں آ گئی۔ خوش دلی سے بولتی زرش کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ بڑی لمبی عمر ہے، آپ ہی بھی مسکرائی۔ شیطان جو ہوئی، زرش نے بگڑا موڈ ٹھیک کرنے کی خاطر شوخی سے اسے چھیڑا۔ بھئی آخر کو تمہاری کزن ہوں، کچھ اثر تو آئے گا نا؟ وہ کسی سے کم تھی کیا؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی۔ اس کی بات پر سب ہنس پڑے۔ اچھا بھائی، اب ہنس چکے تو یہ بتائیں مجھے کون سا انعام دیا جا رہا ہے؟ اس نے بڑے تفاخر سے پوچھا۔ سیکنڈ ہینڈ سوٹ۔
ज़रश ने बेख्तियार कहा तो अम्मी ने इसे फहमाइशी नज़रों से घूरा, जबकि आप ही इसके बात का बुरा माने बगैर हंसते हुए फ़ायज़ा की जानिब मुतवज्जा हो गई। हाँ भाई, मैं ये सूट ज़रश के लिए लाई थी, इसे बड़ा पसंद था। अब मौसूफ़ा मना कर रही हैं, तुम्हें पसंद आए तो तुम ले लो। आप ही का फ़राख दिलाना अंदाज़ वैसा ही था। अब ये बात अलग थी कि फ़राख दिलाना अंदाज़ सिर्फ़ इस्तेमाल शुदा चीज़ों के लिए ही होता था। आई सी। फ़ायज़ा ने सूट को तनकीदी नज़रों से देखा और हाथ में उठा लिया। सूट तकरीबन नया ही था, बमुश्किल 3 या 4 बार पहना हुआ था उन्होंने। इसकी आब में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया था। फ़ायज़ा ने इसे ओके कर दिया। थैंक यू आप ही, इसे मैं ले लेती हूँ। इतना अच्छा तो है, तुमने क्यों रिजेक्ट कर दिया बेवकूफ़ लड़की। आप ही का शुक्रिया अदा करके वो ज़रश की जानिब पलटी तो इसने सारा ध्यान बेसन की तरह मरकूज़ कर दिया, जिसे मज़ीद फेंटने की ज़रूरत नहीं रही थी, और ख़ामोशी से किचन में चली आई। आप ही के रवैये पर इसे हमेशा ही ताव आता था। वो जानती थी बहुत चाहने पर अगर कोई पसंदीदा चीज़ इसे ना मिलती और वो कोई और बरत लेता, फिर इसके दिल में इस शय के लिए कोई पसंदीदगी ना रहती थी, मगर वो हर बार ऐसे ही करती। जब तक वो छोटी रही उनका रवैया नज़रअंदाज करना उसकी मजबूरी था। जो भी चीज़ घर में आती आप ही इस पर बड़ी बनकर हक जिता जाती, और अम्मी उनकी फ़ौरन हिमायत करके ज़रश का एहतजाज हमेशा पसे पुश डाल देती। मगर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई अपने रवैये से आप ही और अम्मी को बावर करवाना शुरू कर दिया कि अपनी हक तलफी तो बर्दाश्त है, मगर बढ़ती हुई चीज़ नहीं। कोशिश तो वो यही करती अपनी किसी भी पसंदीदा चीज़ का आप ही को एहसास ही न होने दे, ताकि वो इसे लाशौरी तौर पर इस अजियत से ना गुजारें। मगर कुदरत की सितम ज़रीफ़ी ये थी कि इसका चेहरा और इसकी गुलाफी आँखें सारे भेद खोल देती। और आप ही जो बचपन से इसकी नफ्स शनास थी फ़ौरन पहचान लेती कि वो क्या चाहती है। जाने उनकी नफ्सियात की कौन सी कड़ी उलझी हुई थी जिसने इन्हें लाशौरी तौर पर इस समर की तरह मरकूज़ कर दिया था। वो ये सब महसूस करते हुए भी किसी से नहीं कह सकती थी। कभी कभी गौर करने बैठती तो एहसास होता कि शायद बाबा जान की अदम तवज्जोही ने इन्हें ऐसा बना दिया था। शुरू से ही बाबा जानू इसे अपने तमाम बच्चों पर फौकियत देते थे, शायद इसलिए कि वो सबसे छोटी थी और बचपन में बहुत बीमार भी रही, तो कुदरती तौर पर बाबा जान इसे अपने से करीब रखते, जबकि अम्मी को घर के और भी बहुत से काम होते थे। फिर जूं जूं वो बड़ी होती गई यह एहसास दिल में कवी हो गया कि आप ही ने इसे अपना हरीफ समझ लिया था। गो कि वो फितरी तौर पर बहुत मोहब्बत करने वाली और नर्म खो थी और इसे चाहती भी बहुत थी, मगर उनके लाशौर में कुछ नासूदगी ज़रूर थी जिसका वो इससे गैर महसूस तौर पर बदला लेती रहती थी। खैरियत, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? फ़ायज़ा इसके पीछे पीछे किचन में चली आई थी। इसे ख़यालात के हजूम में बेकरार में खोया हुआ देखा, फ़ौरन चुटकी बजाकर मुतवज्जा किया। वो जवाब क्या देती, यूँ ही नज़र उठाकर इसे देखा, सर को नफ़ी में जुम्बिश दी। क्या हुआ, आप ही की ऑफ़र बुरी लग गई? फ़ायज़ा ने कयास किया। इसका दिल चाहा अपने चेहरे पर कोई नकाब डाल ले ताकि सारी दुनिया इसके ख़यालात तक इतनी आसानी से रसाई ना हासिल कर सके, मगर क्या करती। सिर्फ चेहरा ही नहीं, इसकी तो आंखें भी बोलती थीं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। इसने आंखें झुकाकर कढ़ाई चूल्हे पर रखी और घी डालने लगी। यानी कि अब झूठ भी? सुधर जाओ लड़की, नहीं तो बहुत पछताओगी। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखो, ज़िंदगी यूँ नहीं गुजरती, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। फ़ायज़ा नासहाना अंदाज में इसे समझाते हुए आलू काटते हुए कही जा रही थी, जबकि वो खामोशी से पकौड़े तेल में डाल रही थी। इसकी बात पर ज़रश ने नज़र उठाकर इसे देखा तो इसके चेहरे पर छाई संजीदगी की परछाइयाँ देखकर बेअख्तियार मुस्कुरा दी। फ़ायज़ा ने चौंक कर नज़र उठाई और मज़ीद संजीदा हो गई। ख़ुद को ठीक करो ज़रश, आगे चलकर तुम्हें किसी का घर भी बसाना है। समंदर जितना दिल चाहिए होता है दूसरे घर में ख़ुद को एडजस्ट करने के लिए, जबकि तुम। साथ ही फ़ायज़ा ने रुक कर सर मायूसी से हिलाया। सच बहुत मुश्किल है तुम जैसी लड़कियों के लिए कंप्रोमाइज़ करना। अच्छा बस ठीक है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं दादी अम्मा बनने की। जो होगा देखा जाएगा। बाद में परेशानी उठाऊं या खुश रहूं, तुम्हें क्या फ़िक्र है? हो सकता है कोई फ़िक्र हो भी। फ़ायज़ा का अंदाज़ ख़ासा मायने ख़ेज़ था। इसकी गहरी सवालिया नज़रें ज़रश के चेहरे पर मरकूज़ हुई तो एकदम हंस के कहने लगी, भाई देखो मैं तुम्हारी कज़न हूँ, हम बचपन से एक ही घर में साथ पले बढ़े हैं। अब अगर तुम परेशान होगी, तुम्हारे हवाले से कोई भी तकलीफ़ उठाएगा तो मुझे तो फ़िक्र होगी ना। फ़ायज़ा ने सरसरी अंदाज में कहकर कढ़ाई में सुनहरे होते पकौड़ों को कफ़गीर की मदद से हिलाया, फिर मुतमईन होकर प्लेट में निकाल निकाल कर रखने लगी।
और वो पुदीने की चटनी निकालते हुए फ़ायज़ा को देखने लगी। जो हस्बे आदत और हस्बे मामूल अपनी पसंदीदा गज़ल गुनगुनाते काम में मगन थी। कभी कभी से फ़ायज़ा बेहद अच्छी खुशकिस्मत लगती। हर बात को सरसरी तौर पर महसूस करने वाली और लापरवाही से कंधे झटक कर अपने काम में मगन हो जाने वाली। किसी के रवैये को हसासियत के साथ सोचने की से आदत थी न फ़िक्र, और जो कभी ज़रश इसे एहसास दिलाती भी तो बड़े इत्मीनान से छोड़ो यार हमें क्या कहकर बात ही टाल जाती। वो सोचती जाने वो बज़ाहिर ऐसी नज़र आती है या अंदर से वो भी ज़रश की तरह घंटों कोड़ने वाली बेवकूफ़ हसास है। मगर ये तो वक्त ने साबित कर दिया था कि वो हकीकतन खुश रहने का सलीका जानती है। जब भी कुड़ती ना थी बल्कि हंसती मुस्कुराती गुनगुनाती रहती। वो तो इसे भी बहुत नसीहतें करती, मगर अपने मिजाज पर हर किसी का बस नहीं चलता। आदत बदलना मुमकिन है, फितरत में तगय्युर तब्दीली लाना बहुत ही दुश्वार होता है। सो वो इसकी बातों पर सर हिलाती रहती। अमलन ऐसा कुछ भी करना इसके लिए तकरीबन नामुमकिन होता था। इस वक्त भी वो फ़ायज़ा की बातों पर ताबेदारी से अमल करने का सोच रही थी कि साद ने आकर सोचों का तसलसल तोड़ दिया। हेलो हेलो, क्या हो रहा है? इसने झांक कर खुशबू से अंदाज़ा लगाते हुए सवाल किया। बूझो तो जाने, फ़ायज़ा ने प्लेट छुपाते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो नज़रों ही नज़रों में ज़रश से पूछने लगा। ख़बरदार तुम कुछ ना बोलना। फ़ायज़ा की उकाबी नज़रें इस पर मरकूज़ थी। ओफ़ो भाई, मैं क्या कह रही हूँ? मुँह फेर कर खड़ी हो गई। मालूम है मुझे तुम दोनों बहन भाई एक नंबर के चीटर हो। खैर, इसे चीटिंग तो नहीं, अलबत्ता अक़रबा परवरी कहा जा सकता है। साद ने अफ़हाम व तफ़हीम से काम लेते हुए कहा। क्योंकि ज़रश इसे ख़तरनाक तेवरों से घूर रही थी और अंदर आकर सामने रखी कढ़ाई को देखा, फ़ौरन पहचान गया। यकीनन पकौड़े बन रहे। ये बहुत चहक कर कहा। क्या खूब बूझा मेरे भाई ने। ज़रश ने भी चहकने में इसका साथ दिया। रहने दो, जितनी देर में इन हज़रत ने पकौड़े बूझे हैं इतने में तो मैं आई क्योंकि 10 सवाल हल कर लेती, मगर इनमें इतनी अकल कहाँ। अरे भाई, अगर तुम मौसम पर ही नज़र डाल लेते बात समझ में आ जाती। तुम्हारी तो बसारत भी कुव्वत शामा की तरह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। फ़ायज़ा ने पहले हिस्से का फिर साथ को भी साफ साफ सुनाते हुए ऐनक पर बराह रास्त हमला किया था। भाई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। सारा फसाद इस दायमी ज़ुकाम का है जिसने आँख में वरम नाक में दम डाल रखा है। साथ पर किसी भी बात का कम ही असर होता था। इत्मीनान से फ़ायज़ा की छुपा कर रखी प्लेट को बरामद किया और इसमें से पकौड़े उठाकर खाते हुए कहा। मगर ज़रश फ़ायज़ा के इस मजाक पर हमेशा की तरह संजीदा हो गई थी। या अपने बहन भाइयों के मामले में वो ऐसी हसास थी, हत्ता कि घर से बाहर अगर कोई फ़ायज़ा या जिब्रान वगैरह को टेढ़ी नज़र से भी देख लेता तो इसे बड़ा अफसोस होता। फ़ायज़ा इसकी आदत जानती थी। जब इस साथ के दूसरी तरफ मुतवज्जा होते ही इसे आंखों के जाविये से रिलैक्स का इशारा किया। फिर जब तक वो चाय पकौड़ों से उलझी रही, साथ वहीं मौजूद उनका दिमाग चाटता रहा। आजकल कोई नया नावल पढ़ा था जब भी उनकी शामत लाए हुए था। बिलाखिर खुदा खुदा करके ट्राली से जाकर बाहर निकलने को थी कि साथ किचन से बाहर धकेलते हुए फ़ायज़ा इसकी तरह बढ़ी। साथ तुम्हारा भाई है तो मेरा कज़न भी है। मेरा मकसद इसकी दिल आज़ारी नहीं था, मैं तो यूं ही से छेड़ रही थी। हम सब एक दूसरे से जुदा थोड़ी हैं। तुम इतनी हसास नाजुक तबे मत बनो। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ दिल में कदूरत नहीं रखनी चाहिए। फ़ायज़ा इसे बेहद संजीदा लहजे में कहते हुए ट्राली बाहर ले गई तो वो एक लम्हे के लिए इसकी बात पर गौर करके गहरी सांस भरती बाहर चली आई। जिब्रान और चची बेगम भी ऊपर ही आ गए थे, लिहाजा मौसम का लुत्फ़ उठाने की गर्ज से सब टेरेस पर आ बैठे। ज़रश ने निगाह भरकर आप ही को देखा, फिर उन्हें हस्बे आदत लापरवाही से हंसते बातें करते हुए स्नैक्स से शुगल करते देखकर सर झटका और सूट वाली बात अपने जहन से निकालने की सही करने लगी। बाहर की बड़ी खूबसूरत शाम थी। मौसम हस्बे मामूल बहुत अच्छा था। वो साथ के कपड़े इस्त्री कर रही थी कि जिब्रान चला आया। उसके हाथ में भी कॉटन का कुर्ता और शलवार थी। तुम इस्त्री कर चुको तो मुझे आवाज़ दे देना ज़रश, मुझे भी कपड़े इस्त्री करने हैं। इसे देखकर वो रुका और फिर इसे कहते हुए कपड़े कंधे पर डालकर पलटने लगा तो ज़रश ने पुकार लिया, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं इस्त्री कर देती हूँ। वो इसे ऑफ़र कर रही थी। नहीं, तुम अपने करो, मैं फ़ायज़ा से कह देता हूँ। वो कुछ झिझका। उफ़ो भाई, अगर मैं कर दूँगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आखिर को कल भी तो इसको करना है सब कुछ। फ़ायज़ा दरवाजे से ही इसका जुमला उचक कर बोलती चली आई।
जिब्रान ने मुस्कुराहट दबाकर गहरी नज़रों से ज़रश को देखा, जबकि वह कड़े तेवरों से फ़ायज़ा की जानिब मुड़ रही थी, और इसने भी फ़ौरन अपना बचाव करने की तदबीर की। फ़ौरन कहने लगी, भाई देखो ना, कल को मेरी तो हो जाएगी शादी, फिर तो तुम्हें ही देखने पड़ेंगे ना मेरे हिस्से के भी काम। तो क्या मैं तुम्हारे ख्याल में घर बैठी रहूँगी? जिब्रान की मौजूदगी को भूलकर बेख्याली में चमक के बोली। तो फ़ायज़ा का बेसाख्ता कह कहा जिब्रान को मसहूर कन मुस्कुराहट इसे बुरी तरह खज्जल कर गई। अरे नहीं भाई, हम तुम्हारी भी शादी कर देंगे। फ़ायज़ा का अंदाज़ बच्चों की तरह चुमकारने वाला था। वो और भी झुंझलाई और फ़ायज़ा को मारने के लिए दौड़ी, तो जिब्रान ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा और इसे रोक लिया, जबकि फ़ायज़ा छलावे की मानिंद गायब हो चुकी थी। वो चौंक के मुड़ी, खफीफ से होकर आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ा लिया। खजालत में ज़रा ख्याल न आया था कि वो क्या कर रही है। जिब्रान की गहरी सियाह आँखों में बड़ी तौसीफ थी इसके लिए। चलो अब रहने दो, छोड़ो, वो तो मजाक कर रही थी। तो मैं कोई सचमुच तो इसे नहीं मार रही थी, मैं भी तो बस इसे डरा रही थी। जिब्रान के मध्यम मध्यम लहजे पर इसने अपना इत्माद बहाल करते हुए कहा, तो वो ताइदी अंदाज में मुस्कुरा दिया। अच्छा खैर, आप अपने कपड़े लाइए, मैं इस्त्री कर दूँ। इसे ख्याल आया। जिब्रान ने कंधे से कुर्ता शलवार उतार कर इसे थमा दिया, तो वो मकान के अंदाज में इस्त्री स्टैंड की तरह मुड़ी और पूछने लगी, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सोचा तुम सबको आइसक्रीम खिला दूँ। रियली? जिब्रान ने कहा तो मसरूर से होकर पलटी। तुम चलोगी? बड़ा गहरा और ख़ास लहजा था उसका, नेकी और पूछ पूछ। आइसक्रीम का सुनकर तो वो ख़ुद को भी भुला देती थी। जिब्रान के लहजे पर क्या खाक और करती, फ़ौरन खुशी का इजहार किया। फिर ख्याल आती पूछने लगी, कौन कौन जाएगा जो खुशी से मेरे साथ चल सके? उसके लबों पर नर्म और मध्यम सी दिलावेज मुस्कुराहट थी। मैं तो तैयार हूँ, इसने बेख्तियार कहा। चलो जी, मुबारक हो। फ़ायज़ा फिर टपक पड़ी और दोबारा बड़े सही वक्त पे टपकी थी। तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग आउटिंग पर जा रहे हैं? इसने तहय्युर से फ़ायज़ा को देखा और सादगी से सवाल किया, तो फ़ायज़ा का दिल चाहा सर पीट ले अपना। जिब्रान अलबत्ता कुछ खफीफ सा हो गया था इसकी क्रैश लैंडिंग पर। ख्वाब आया था मुझे। इसने कुछ मायूसी से जिब्रान को देखा। वो मुस्कुराहट लबों पर सजाता आहिस्तगी से ये कहकर जल्दी तैयार हो जाओ, कमरे से निकल गया। बताओ क्या पहनूं मैं? जिब्रान के जाते ही इसने मसरूर लहजे में फ़ायज़ा का कंधा हिलाया। हमेशा कपड़ों के मामले में वो फ़ायज़ा से ही मशवरा लेती थी, सो अब भी इस्तफसार हुआ। सुर्ख रूसी जोड़ा पहन लो। फ़ायज़ा की झुंझलाहट इसकी समझ से बाहर थी। क्यों? इसने गुस्से से आंखें निकाली। खुश तो तुम ऐसे हो रही हो जैसी शादी आज तुम्हारी। फ़ायज़ा ने कहा तो इसे घूर के पलटी और ख़ामोशी से कपड़े इस्त्री करने लगी। सॉरी भाई, लगता इन तिलों में तेल नहीं। बाहर निकलते हुए इसने अंदर आते जिब्रान से कहा और इसकी तरफ इशारा किया, तो बेसाख्ता हंस दिया। तुम फिक्र मत करो, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। वो बड़ा मुतमईन था। क्या मतलब? इसकी खाक समझ में नहीं आया। मतलब ये कि कुछ बातें वक्त आने पर ही समझ में आती हैं। तुम इसे अभी परेशान ना किया करो, पहले घर के बड़ों तक ये बात पहुंच जाए, फिर इससे भी सवाल जवाब कर लेना। जिब्रान ने मध्यम लहजे में कहा, तो फ़ायज़ा इसकी सियाह आंखों में उतरी सज्जल सज्जल रोशनी देखकर दिल से इसके लिए दुआ मांगने लगी। खैरियत, ये मशावरती इजलास दरवाज़े पर क्यों मुनक्किद हो रहा है? 7 सीढ़ियाँ फलांगता नीचे आया और इन दोनों को इस कदर संजीदगी से बातें करता देखकर वहीं ठिठक के रुक गया। कुछ ख़ास बात है क्या? हाँ, जिब्रान भाई सबको आउटिंग के लिए लेकर जा रहे हैं, फ़ायज़ा ने इत्तला दी। चलोगे? जिब्रान ने पूछा तो इसने एक नज़र हाथ में पकड़ी किताब की तरफ देखा। अभी इनकार करने का सोच ही रहा था कि अंदर से ज़रश जिब्रान का सूट हैंगर में लटकाई बरामद हुई और इसे वहीं टोक दिया। कोई इनकार नहीं होगा भाई, आपको चलना पड़ेगा। इसने इतने मान और हुक्म से कहा कि 7 कंधे उचका कर रह गया। इनकार करने की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी थी इसने। चुनाचा ज़रा देर बाद ही जिब्रान, साद, ज़रश, फ़ायज़ा और हसन समेत सब लांसर में भरकर चाइनीज़ की तरफ रवाना हो रहे थे। चाइनीज़ के लिए हसन और फ़ायज़ा ने बमुश्किल जिब्रान को राज़ी किया था। ज़रा देर सीवीओ पर लहरों के साथ चहलकदमी करने के बाद उन्होंने हस्बे प्रोग्राम चाइनीज़ में डिनर किया। आइसक्रीम वापसी पर खानी थी। क्या ख्याल है, आप ही की तरफ चलें? रस्ते में फ़ायज़ा ने सबसे सवाल किया। श्योर, साद ने फ़ौरन कहा। जिब्रान ने भी ताइदन सर को जुम्बिश दी।
آپ ہی کے دیور سے سعد اور جبران کی خاصی اچھی دوستی تھی، جبکہ آپ ہی کے گھر جانے کا سن کر زرش کے چہرے پر کئی خوبصورت رنگ آ ٹھہرے۔ خیریت؟ تمہیں کیا ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہے؟ ذرا سی بحث و تمہیز کے بعد حسن بھی جانے کے لیے راضی ہو گیا تو جبران نے گاڑی سوسائٹی کی طرف موڑ لی۔ فائزہ جو حسن سے الجھ رہی تھی، اسے منا کر جب زرش کی طرف پلٹی تو اس کے چہرے پر اترے رنگ اور خوبصورت پرچھائیاں دیکھ کر ٹھٹکی۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ موصوفہ، یہ آپ کا چہرہ کون سی داستان سنا رہا ہے؟ کھوجتی نظریں اس پر جمائی ہوئے تھی۔ بکو مت، میرے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ آئینے میں دیکھو۔ پلیز فائزہ، تم لکیر سے تصویر بنانا نہ شروع کر دیا کرو۔ اس نے مصنوعی غصے سے اسے آنکھیں دکھائیں تو فائزہ حسن کا خیال کر کے خاموش ہو رہی، جو آگے بیٹھے جبران اور ساتھ کی گفتگو میں شریک تھا۔ راستے سے جبران نے بروسٹ اور ڈھیر سارے سنیکس آپ ہی کے لیے خرید لیے۔ جب وہ لوگ ان کے گھر پہنچے تو انہیں اچانک اور اس قدر لدا پھندا دیکھ کر آپ ہی کچھ حیران، کچھ مسرور سی ہو گئی۔ سچ بہت اچھا کیا تم لوگوں نے کہ آ گئے، میں ابھی سب کو یاد ہی کر رہی تھی۔ ایک ہفتے سے آپ نے شکل نہیں دکھائی، کہاں تھی؟ اور آپ زوار بھائی، آپ کہاں غائب ہو گئے؟ یقین کیجئے کسی سچے عاشق کی طرح یاد کیا ہے۔ ساتھ تو آپ ہی کے بولتے ہی شروع ہو گیا۔ زوار اس کا ناول لے گئے تھے، سو اس نے حقیقتاً بڑی شدت سے یاد کیا تھا انہیں۔ آپ ہی اور زوار کچھ خفیف سے ہو گئے۔ زرش نے سمجھانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا خیر آپ ہی، آپ یہ سب نکال کر کھائیے، نہیں تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فائزہ نے فوراً شور مچا دیا تو آپ ہی زرش کو لے کر کچن میں چلی آئیں۔ اس نے درزیدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، زیات کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ گھر کی خاموشی گواہ تھی کہ سوائے آپ ہی اور زوار بھائی کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا آپ ہی؟ آج آپ لوگ گھر میں اکیلے ہیں؟ اس نے اپنے لہجے کو سرسری سا بنا کر پوچھا اور بروسٹ نکال کر پلیٹ میں رکھنے لگی۔ اکیلے؟ آپ ہی اس کی بات کا مزہ لے کر خوب ہنسی۔ ارے کبھی دو بندے بھی اکیلے ہوتے ہیں؟ انہیں بات بے بات ہنسنے کی عجیب سی عادت تھی، کبھی کبھی سے سخت کوفت ہوتی۔ اس وقت بھی اس کا دل چاہا انہیں خاموش کرا کر سیدھے سیدھے زیات کے متعلق ہی پوچھ لے، مگر اس کی ضرورت نہیں پڑی، خود ہی بتانے لگی۔ اصل میں آنٹی زیات کے ساتھ اپنی بہن کو دیکھنے گئی ہیں۔ ان کا آج کل بائی پاس ہوا ہے، اس لیے وہ اسے بتا کر ٹرالی میں سب سامان رکھنے لگیں۔ آپ نہیں گئیں؟ نہیں، میں کل دیکھ آئی تھی انہیں، زوار بھی گئے تھے، اس لیے آج نہیں گئے۔ بھلا جائے بغیر کیسے رہ سکتے تھے؟ آنٹی تو خوب سناتی کہ مرتی ہوئی خالہ کو بھی دیکھنے نہ گئے۔ یوں بھی زیادہ تو زیات تو بہت چکر لگاتا ہے ہاسپٹل کے، تھوڑا تو بہت تو بیلنس کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ ہی اپنی ساس کا ذکر کرتے ہوئے ذرا ہلکی آواز میں بولی، اور زیات کے بارے میں بتاتے ہوئے کافی طنزیہ لہجہ تھا ان کا۔ وہ صرف محسوس کر کے خاموش ہو رہی تھی۔ کہتی کیا؟ آپ ہی تو فوراً بال کی کھال نکالنے پر تیار ہو جاتی۔ اسی لیے وہ ان کے گھر بہت ہی کم آتی تھی۔ آپ ہی اس کے دل کا حال کہتی آنکھوں سے وہ راز نہ جان لیں جو وہ خود سے بھی چھپا کر رکھنے کی کوشش کرتی تھی، حتیٰ کہ فائزہ کو بھی اس نے ابھی تک ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ گھر پہ چونکہ زیات کا ذکر ہوتا نہیں تھا، لہٰذا اس کے چہرے پر پھیلے رنگ بھی کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ البتہ اکثر تنہائی میں وہ اسے سوچتی تھی، اس وقت جب کوئی اس کے پاس نہ ہوتا، اور ایسے میں اگر محبت کے اور ہی رنگوں کی دھنک اس کی آنکھوں میں اترتی بھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ خصوصاً آپ ہی تک تو وہ کسی قیمت پر یہ خبر نہ پہنچنے دینا چاہتی تھی کہ وہ زیات میں انٹرسٹیڈ ہے۔ یوں بھی خود زیات کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا، آپ ہی اس کا ذکر شاذ و نادر ہی کرتی، اور اگر کبھی باتوں باتوں میں تذکرہ نکل بھی آتا تو غیر محسوس طریقے سے ادھر ادھر ہو جاتی، بلکہ آپ ہی سمیت کسی کے بھی سامنے سے سوچنے سے گریز کرتی، کہیں آنکھیں دل کا راز افشا نہ کرتے۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ بھی اب آتے ہی ہوں گے، کافی دیر ہو گئی ہے انہیں گئے۔ سب سامان ٹرالی میں رکھتے ہوئے وہ بولی اور پھر اس کی جانب پلٹی۔ ویسے تم لوگوں نے ناحق کس قدر تکلف کیا؟ یقین کرو آج میں نے پیزا بیک کیا تھا، تمہیں تو معلوم ہے نا زوار کس قدر شوقین ہے میرے ہاتھ کا بنا پیزا کھانے کے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہی تو کھا کر فارغ ہوئے تھے ہم۔ اچھا، ہمارا انفیکٹ پروگرام اس طرف آنے کا اچانک ہی بنا تھا، پہلے سے کچھ اندازہ ہوتا تو میں فون کر دیتی آپ کو، اس نے سر ہلا کر کہا۔ اچھا تم ذرا اسے دیکھو اور بتاؤ کہ کیسا ہے۔ آپ ہی نے ہاٹ کیس سے اس کے لیے پیزا نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے تھوڑا سا زیات کے لیے پہلے سے ہی نکال دیا تھا، ورنہ زوار تو اسے بھی نوش فرما چکے ہوتے۔ وہ ہنس کر بولی تو زرش کے پیزا کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ رک سے گئے۔ تو پھر آپ ان کے لیے ہی رکھ دیں، میں نہیں کھا رہی۔ زیات کے حق میں دستبردار ہو رہی تھی۔ کیوں؟ آپ ہی حیران رہ گئی، شوقین تو کھانے کی وہ بھی کم نہیں تھی۔
बस मूड नहीं हो रहा। अभी जिब्रान भाई चाइनीज़ ले गए थे, वापसी पर आइसक्रीम भी खानी है, गुंजाइश रखनी पड़ेगी। इसने सरसरी सा अंदाज अपनाया। ओह, उन्होंने सर हिलाया। चलो ठीक है, फिर कभी तुम सबको ख़ास तौर पर इनवाइट करूँगी। उन्होंने मज़ीद बहस का इरादा मौकूफ़ करके पिज़्ज़ा वापस रखा और ट्राली धकेलती इससे बातें करते वो बाहर चली आई। फ़ाइज़ा समेत चारों मर्द हजरात ज़ोर व शोर से सियासत पे बहस कर रहे थे। सियासत तो फ़ाइज़ा का भी पसंदीदा मौजू था, जिसके सबब वो इससे चिढ़ती भी बहुत थी। सो वो इन सब के साथ मुबाहिसे में शरीक थी। चलो भाई, अब ये फजूल सियासत की क्लास ऑफ करो और अल्लाह की नेमतों की तरफ मुतवज्जा हो जाओ फ़ौरन। आप ही ने आते बड़ेपन से उन्हें टोका। नहीं आप ही, ये सब तो हम आपके लिए लाए थे। आप और जवार भाई खाइए प्लीज़। जिब्रान ने सबसे पहले इनकार किया और सब ने तायद की। इससे पहले कि आप ही मज़ीद कुछ कहती, ज़याद की गाड़ी का हॉर्न बजा। ज़रश की रग रग में जैसे सनसना गई। उसने दरजीदा नज़रों से गेट की जानिब देखा। मेरा ख्याल है ज़याद और अम्मी आई हैं। आप ही ने खड़े खड़े अंदाज़ा लगाया और चौकीदार को दरवाज़ा खोलने के लिए कहकर खुद भी गेट की तरफ बढ़ी। ग्रीन असान के अंदर आते इसके यकीन और आपी के शुबे की तस्दीक हो गई। ज़याद अकेला लौटा था, आपी की सास नहीं थी। वो गाड़ी पार्क करके उन सब के पास चला आया। सबसे अच्छी हेलो हाई थी। उसने मुस्कुराते हुए इन सब की जानिब कदम बढ़ाए तो ज़रश की पलकें लम्हे भर के लिए साकित रह गई थी। वो खुश शक्ल ही नहीं, खुश मिजाज भी था। खैरियत, आंटी कहाँ हैं? आपी ने इससे सवाल किया। वो दरअसल खाला की तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी। समन बहुत घबरा रही थी, इसलिए अम्मी वहीं रुक गई हैं। मैं सुबह उन्हें ले आऊँगा जाकर। वो इन्हें बताकर उन सब की तरफ चला आया। और भाई, आप सब लोग कैसे हैं और इस वक्त यहाँ किस सिलसिले में नज़ूल हुआ है? सबसे मुसाफिया करके वह ज़रश के पास खाली पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। हम सब बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं और अल्लाह ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब है। जिब्रान का अंदाज़ नीम मज़ाहिया था। सब हंसने लगे। ज़याद भी धीरे से मुस्कुरा दिया। ज़रश ने इसे चौंक कर बहुत महवियत से देखा। उसका तबस्सुम बड़ा दिलावेज था। वो मुस्कुराए तो हंस हंस पड़े कई मौसम, वो गुनगुनाए तो बादे सबा ठहर जाए। वो सबके साथ आम से अंदाज में बातें कर रहा था। ज़र्श की तरफ कोई खसूसी तवज्जो नहीं थी, मगर इसके लिए इतना ही बहुत था कि वो इसके इर्द गिर्द मौजूद है। वो इसे देख सकती है। आँखों की रोशनियाँ इसके मरहून मिन्नत मज़ीद बढ़ सकती हैं। समातों की फ़ज़ा ख्वाब ख्वाब हो सकती है। ख्वाह वो किसी और से ही बात कर रहा है, कोई और ही मौजूद बेज़ेर बहस है। भाई, ये सब मौसम इंजॉय करने निकले थे। ये सब चीज़ें हमारे लिए उठा कर ले आए। तुम भी लो ज़याद और जिब्रान, हसन। अब क्या इनविटेशन कार्ड दूँ तुम लोगों को? देखो तो सब ठंडा हो रहा है। आप ही ने ज़याद को उनके आने का मकसद बताते बड़े नाज और मान से कहा। मैके का आया एक फूल भी गुलिस्तान लगता है। आप ही के लहजे में मैके का फ़ख्र रचा बसा था। साथ ही उन्होंने इन सबको घुरका और फहमाइशी नज़रों से घूरा। सबको ही कुछ ना कुछ लेते ही बना। गो की गुंजाइश नहीं थी, मगर आप ही हिटलर की आखिरी जानशी बनी हुई थी। लिहाजा इससे पहले वो इन सब की प्लेटों पर माउंट एवरेस्ट खड़े करती, सब ने तकल्लुफ़न चंद स्नैक्स प्लेट में डाल लिए। जिब्रान ज़याद से इसकी खाला की खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। हाँ, अब तो खैर पहले से बेहतर है, मगर हालत तो अब भी तशवीशनाक है। आईसीयू में है। ज़याद ने बड़ी संजीदगी दिल गिरफ्तगी से बताया। ज़रश ने देखा, इसके चेहरे पर फ़िक्रमंदी तशवीश की परछाइयाँ थी। इतना तफक्कुर, वो भी खाला के लिए? वो खासी हैरान हुई, क्योंकि आम तौर से वो इतना हसास ज़िम्मेदार नज़र आने के बजाय खासा लाउबाली और बेफिक्र से लगता था, जैसे कि अब नज़र आ रहा था। सो इसकी शख्सियत का ये पहलू भी इसे बहुत अच्छा लगा। बकौल अफलातून औरत सब कुछ देख सकती है, मगर अपने महबूब के ऐब उसे नज़र नहीं आते। सो वो भी कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते, नज़र झुकाए बड़े इंहमाक से उसे सुन रही थी। वो क्या कह रहा है वो इससे गर्ज नहीं रखती थी। वो बोल रहा है, इसकी भारी गंभीर आवाज़ लॉन के एक मखसूस हिस्से में गूंज रही थी। ये बात ही इसे खुश रंग वादी ख्वाब में लेकर जा रही थी। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए, कहीं आइसक्रीम पार्लर बंद ही ना हो जाए। फ़ाइज़ा ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र दौड़ाते हुए यकीनन इसी से कहा था, मगर वो सुन नहीं सकी। हेलो, ये दश्ते तसव्वुर से ज़रा जल्दी वापस आ जाओ डियर। अब कि इसने बाकायदा इसका कंधा हिलाया तो वो चौंकी। पहले गड़बड़ाई, फिर तीखी नज़रों से इसे घूरा। किस कदर मसहूर कुन माहौल था। वो गुम थी कि फ़ाइज़ा की धीमी गुसीली आवाज़ ने सारा तिलस्मी तोड़ दिया था। क्या मुसीबत है? क्या कह रही थी तुम? फ़ाइज़ा ने भी जवाबन खूनखार नज़रों से इसे घूरा तो इसे अपनी गलती का एहसास हुआ।
इस कदर मदहोश होने की भी क्या ज़रूरत थी? मगर भरम कायम रखने के लिए खशमगी निगाहों से इसे देखा। खाक कह रही थी मैं, तुम क्या समाते गिरवी रख के बैठी हो? इर्द गिर्द का होश ही नहीं। अब उठो, बहुत देर हो गई है। फ़ाइज़ा ने इसे बुरी तरह झाड़ा और आंखों ही आंखों में जिब्रान को चलने का इशारा करते उठ खड़ी हुई। अरे तुम सब कहाँ चले? सब एक एक करके उठे तो आप और जवार भाई बौखला के खड़े हो गए। बस अब चलेंगे जवार भाई, बहुत देर हो गई है। घर पे सब इंतज़ार कर रहे होंगे, हमने उन्हें बताया भी नहीं था कि यहाँ पर हैं हम। फ़ाइज़ा ने जल्दी से कहा कि इससे पहले कि आप भी कुछ कहती, अलबत्ता वो खामोशी से मुंह में घुनघुनियाँ डाले खड़ी थी। ज़याद की मौजूदगी में एक जामिद चुप ऐसे ही इसका हिसार कर लेती थी। दर हकीकत वो इसकी मौजूदगी को महसूस करके इतनी महव हो जाती कि इर्द गिर्द के माहौल का पता ही ना चलता, कौन बोल रहा है, क्या कह रहा है, इसे खबर ना होती। इस वक्त भी वो एक तरफ खड़ी टिशू से हाथ साफ करते कि नखियों से साद और हसन से हाथ मिलाते ज़याद को देखने में मुनहमिक थी। एक सज्जल खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने लबों का अहाता कर रखा था। इस वक्त फ़ाइज़ा ने इसे टहोका दिया कि वो भी कुछ बोले। ऐसे खामोश खड़ी है जैसे घर चलने के लिए राज़ी ही ना हो। फ़ाइज़ा के मुतवज्जा करने पर बौखला कर इसकी जानी मुड़ी और गड़बड़ाते हुए इस्तफ़हामी अंदाज में इसे देखा। जब जिब्रान की अलविदाइया इजाज़त लेने की बात और आपी की हील हुज्जत कान में पड़ी तो फ़ौरन बोली, नहीं आपी, फिर कभी आएंगे, आज तो बहुत देर हो गई है। फौरी तौर पर यही जुमला सूझा तो कह उठी। ऐन इसी साथ ज़याद ने इसे देखा। इस तमाम वक्त में बिल्कुल खामोश रही थी। अभी भी बोली तो खासी घबराई हुई कैफियत आ रही थी। इस पर ज़याद की निगाह ने इसे यकदम ठिठका दिया। मज़ीद कुछ कहने का हौसला न हुआ और इसने नज़र झुका ली। ज़याद की नज़रें बहुत सरसरी अंदाज में इस पे टिकी थीं और इसी कैफियत से वापस लौट गई। वो सब वापस लांसर में आ बैठे। सबसे आखिर में ज़रश गेट से निकली। आप ही ने इसे रोक लिया था ये कहने के लिए वो चांद ग्रहण वाले रोज़ रात को अम्मी की तरफ ही रुकेंगी। सच? इसे हकीकतन हैरत हुई। आप ही के घर खुशी होने वाली थी, लिहाजा उन्हें रिवायत के रो से ये चांद मैके में ही करना था। सो वो रहने आ रही थी, वरना शादी के बाद बहुत कम ही ज़वार उन्हें मैके रहने की इजाज़त देते। गो के आना जाना तो तकरीबन हर हफ्ते होता, अक्सर वीकेंड पर वो दोनों इधर ही होते। मगर रात को रुकने से हमेशा गुरेज करती कि ज़वार को पसंद नहीं था। जबकि ज़रश का बस चलता तो इन्हें एक आध हफ्ता तो ज़रूर रोकती। शादी से पहले तमाम तल नज़रियाती इख्तलाफात के बावजूद वो और आप ही बहुत अच्छे दोस्तों की तरह रहती थी। हर बात शेयर करती, खूब हल्ला गुल्ला मचाए रखती थी। फ़ाइज़ा ज़रश से साल भर बड़ी थी, सो वो दोनों मिलकर इस पे खूब रोब झाड़ती। मगर दिन भर की झाड़ें, छोटे मोटे हंगामे बड़े अच्छे लगा करते थे। तमाम बातों के बावजूद वो आप ही से मोहब्बत करती थी। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। हाँ, वो ज़रा सी शर्मीली मुस्कान लबों पर सजा कर बोली, फिर मैं इंतज़ार करूँगी। इसने सरखुशी से यूं कहा जैसे बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। ज़याद ने मुस्कुराती नज़रों से बहनों के प्यार को अकीदत से देखा और आहिस्ता रवी से कदम उठाता अंदर की जानिब बढ़ गया। जबकि आपी और जवार भाई बाहर तक आए। ओफ़ो ज़रश, अब आ भी जाओ। एक तो मैं तुम्हारी गेट पर खड़े होकर बातें करने की सादत से सख्त एलर्जिक हूँ। साद ने इसे बेजारी से कोफ्त भरे अंदाज में घुरका तो वह जल्दी से खुदा हाफिज़ कहकर फ़ाइज़ा के साथ आ बैठी। क्या बातें हो रही थी? हमेशा की तरह फ़ाइज़ा की जरा शुरू हो चुकी थी। इसने मुख्तसरन आप ही की आमद और क़याम का बताया तो वो भी खुशी के इजहार के तौर पर फ़ौरन चुटकी बजाते हुए जाने कौन कौन से अल्लम गल्लम प्रोग्राम्स बनाने लग गई थी। वो बज़ाहिर तो बड़े इन्हिमाक से इसे ही सुन रही थी, दर हकीकत वो कहीं और गुम थी। मैं इतनी बुज़दिल हूँ कि तुम्हारा नाम नहीं ले सकती। मैं इतनी बहादुर हूँ कि तुम्हारे तसव्वुर को अपने अंदर आबाद रखती हूँ। तुम्हारे वजूद को लफ्ज़ों में तख्लीक करती हूँ और सुनती हूँ तुम मुझे मिलो बेखौफ होकर कि मैं तुम्हें भी वहाँ छुपा के रखूँगी जहाँ मैं अपने वादे छुपा कर रखती हूँ। किश्वर नाहिद की खूबसूरत नज़म इसने अपनी डायरी में बहुत पहले आप ही की शादी के बाद लिखी थी, मगर इसे रोज़ पढ़ना इसका मामूल था। आप ही की शादी तय होने तक वो इनकी सिर्फ सास को जानती थी। ज़वार की तस्वीर देख रखी थी, जबकि ज़याद का सिर्फ ज़िक्र सुना था, और ये भी इसलिए ज़रूरी था कि बहरहाल तारुफ होना तो ज़रूरी होता है। हत्ता कि एक आध बार शादी से पहले बहुत ज़रूरी भी हुआ तो आप ही की सास ही आती, काम निपटा कर चली जाती। उनमें से सिर्फ घर की बड़ी ख़वातीन और मर्दों ने ही ज़याद और ज़वार को देख रखा था। लिहाजा जब मेहंदी वाले दिन इसने पहली बार ज़याद को देखा तो हैरान रह गई। आप ही की सास जिस तरह इसका जिक्र करती, इससे तो यही लगता था कोई स्कूल गोइंग लड़का होगा, मगर वो तो खासा मैच्योर्ड और पोस्ट ग्रेजुएट था।
مزاجن حد درجے شوق اور بزلہ سنج۔ اپنے گھر میں اس نے ایسے لڑکے کہاں دیکھے تھے؟ آپ ہی سے چھوٹا، اس سے بڑا 7 کتابی کیڑا تھا، سارا دن کتابوں میں سر گھسائے رہتا۔ اکلوتے ہونے کے باوجود اس میں کھلنڈرا پن یا طبیعت میں لاؤبالی پن بالکل نہیں تھا، اور دوسرے جبران کا مزاج بہت نرم اور سنجیدہ تھا۔ اس کی متانت اور چہرے سے جھلکتا وقار اس کی طبیعت کا غماز تھا، جبکہ حسن باوجود سب سے چھوٹا ہونے کے خاصا لیے دیے رہنے والا تندخوا لڑکا تھا، ذرا سی بات پہ طوفان کھڑا کر دینے والا۔ ایسے میں اسے زیات کا مزاج بہت اچھا لگا۔ وہ ہنسنے، دوسروں کو ہنسانے کا فن جانتا تھا۔ آپ ہی کے رسم کے وقت وہ جانے کہاں سے آ ٹپکا تھا۔ پھر اس نے ساری لڑکیوں کو خوب ستایا۔ چونکہ زوار کی کوئی سگی بہن نہ تھی، ان کی خالہ ذات سمن نے ہی ساری رسمیں کی۔ وہ سمن سے بہت فرینک معلوم ہوتا تھا، اس کے ساتھ خوب ہلا گلا کیا۔ حتیٰ کہ جب رسم کرتے ہوئے زوار کی انگلی پکڑ کر مہندی لگائی تو وہی اسے نروس کرنے میں سب سے زیادہ آگے تھا۔ اس کے برجستہ جملے اور خوبصورت شوخ نظروں نے محفل کو زعفران بنا دیا تھا۔ شادی کے تمام فنکشنز میں وہ زرش کے ساتھ اس کا رویہ بہت زچ کرنے والا تھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی کے ستانے پر روٹھی نہیں تھی، برا نہیں منایا تھا، بلکہ دل میں اس کی شوق جسارتیں اور جملے ایک عجیب سے مسرت پیدا کر دیتی تھی۔ مہندی کے فنکشنز میں جتنے گانے بھی گائے گئے ان میں زیادہ شریک رہا، خوب حلق پھاڑ کر گیا، خصوصاً زرش اور سعد کا تو خوب ہی ریکارڈ لگایا گیا۔ خوبصورت اور نفیس ملبوسات میں ملبوس وہ بظاہر زیات کی باتوں پر غصہ ہوتی، مگر دل ہی دل میں مسکراتی ادھر ادھر پھرتی رہی تھی۔ آج بھی جب وہ خوبصورت لمحے یادوں کی بھول بھلائیوں سے نکل کر تصور کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں ڈھیروں رنگ ساتھ لیے اترتے تو وہ خود سے بھی بیگانہ ہو جاتی، مگر اپنی بزدلی کے باعث کسی سے بھی کچھ نہ کہتی، بس اپنے تصور کو اپنے اندر آباد رکھتی تھی۔ ڈھیروں باتیں کہتی، لفظ تخلیق کرتی، پھر خود ہی انہیں سن کر ہنس پڑتی، بلکہ کبھی کبھی تو فائزہ اسے اکیلے بیٹھے مسکراتے دیکھتی فوراً گھبرا کر استفسار کرتی، خیریت زرش، کیا بات ہے؟ یہ اکیلے کیوں ہنسا جا رہا ہے؟ کتنی بار کہا ہے کہ مغرب کے وقت تنہا نہ بیٹھا کرو، اللہ جانے کیا دیکھ کر مسکراتی رہتی ہو۔ اس کے متردد اور متفکر لہجے میں صاف شرارت ہوتی، اور جواباً وہ اسے شعلہ بار نظروں سے گھور کر جو چیز ہاتھ میں آتی کھینچ مارتی۔ فضول نہ بولا کرو۔ فائزہ کی بات پر خفیف بھی ہو جاتی۔ آپ ہی کے گھر سے آنے کے بعد وہ بہت خوش تھی۔ ایک تو آپ ہی رہنے آ رہی تھی، دوسرے کئی دن بعد زیات کو بھی براہ راست دیکھا تھا، ورنہ تو جب آپ ہی کے گھر فون کرتی تبھی کبھی کبھار آواز سننے کو مل جاتی تھی۔ عجیب ہوتی ہے محبت بھی، انسان کبھی کبھی کسی دوسرے کے لیے ایک ایسی مقناطیسی کشش محسوس کرنے لگتا ہے جو اسے اپنے حصار میں محصور کر لیتی ہے، لیکن اکثر اوقات یہ کشش صرف یک طرفہ طور پر ہی محسوس کی جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب سے اس کا خاطر خواہ رد عمل ظاہر نہیں ہوتا۔ مگر یہ نامراد شے محبت انسان کو ایسے جکڑ لیتی ہے کہ وہ اس رد عمل کا انتظار کیے بغیر اندیکھی منزل کی طرف اتنا دور چلا جاتا ہے کہ واپسی کا سفر مشکل ہو جاتا ہے۔ ذرا شجاز بھی ایک ایسے ہی سفر پر گامزن تھی جس میں اس کا ہم سفر محض ایک تصور، ایک چاہت بھرا خیال ہی تھا۔ ورنہ در حقیقت زیات کی طرف سے محبت بھری ایک نگاہ بھی اس کے چاہت کے کشکول میں نہ ڈالی گئی تھی، مگر چاہنے والے بنا کسی طمع کے چاہے جانے کے سزاوار ہوتے ہیں۔ محبت کے سودے میں معاوضے کی اہمیت شاید ہوتی نہیں ہے، یا پھر زرش کی ہی نظر میں نہ تھی، یا وہ بہت پر امید تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ بہت خاموشی سے دل کے رباب پر چھیڑنے والے اس ساز کو سننے میں مگن تھی، اور بہت خوشی سے محو تھی۔ آپ ہی گھر آئیں تو امی اور چچی بیگم نے انہیں ڈھیروں ہدایتوں سے نوازا۔ فائزہ نے سنا، منہ بنائے بغیر رہ نہیں سکی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھے چاند تو سسرال میں دیکھے جاتے ہیں، اور برے میکے میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اسے اس کے منہ بگاڑنے پر ہنسی آ گئی۔ پریشانی تو کوئی نہیں، تم بتاؤ، یہ کوئی لاجک ہے؟ لڑکی کو برے چاند جو کہ ان کے دانست میں برے ہوتے ہیں میکے بھیج دیا جائے؟ فائزہ نے خواہ غصے کا اظہار کیا۔ اوفو، اگر تمہیں اتنا ہی اعتراض ہے تو نہ آنا میکے، بیٹھی رہنا وہیں سسرال میں۔ اس نے ہنسی کے بیچ میں ذرا رک کر کہا، پھر اس کے کڑے تیور دیکھ کر فوراً کہنے لگی، یہ محض ضعیف الاعتقادی ہے، اس طرح لڑکی اپنے میکے تو آ سکتی ہے نا، اب آپ ہی کو دیکھ لو، پورے 3 مہینے بعد قیام ہوگا ان کا یہاں۔ سچ مجھے تو ایسی رسموں میں کوئی نقصان نظر نہیں آتا، لیکن ہے یہ غلط؟ ہاں وہ تو ہے۔ اینی وے، یہ تمہارا چہرہ کیوں چمکتا چاند بنا ہوا ہے؟ فائزہ نے متفق ہو کر اسے کھوجتی نظروں سے دیکھا، فوراً نظر چرا گئی۔
بھائی اس کی وجہ تو یہ کہ میں خالہ بننے والی ہوں۔ اس نے باوجلا جملہ پھینکا۔ ویسے فائزہ کتنا مزہ آئے گا جب ایک خوبصورت سا بھانجا یا بھانجی ہمارے گھر آئے گی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں خواب تھے۔ فائزہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے اسے خوابوں کی وادی سے کھینچ نکالا۔ واپس آ جاؤ ڈیئر کزن، ابھی اس میں کافی وقت ہے، اور اب چل کر کھانے کا بندوبست کرو۔ زوار بھائی کو کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دینا ہے، یہ تائی جان کا حکم ہے۔ وہ اٹھی اور اسے بھی اٹھایا تو سر ہلاتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ آپی برآمدے میں امی اور چچی بیگم کے ساتھ بیٹھی ہدایت لے رہی تھی۔ وہ دونوں انہیں دیکھ کر معنی خیزی سے مسکراتی کچن میں چلی آئیں۔ کھانے کے بعد زوار بھائی تو چلے گئے اور وہ لوگ آپی کے گرد جمع ہو گئے۔ پھر رات گئے تک ڈھیروں باتیں کی تھی جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ جبران اور آپی تقریباً ہم عمر تھے، لہٰذا ان دونوں کی بنتی بھی خوب تھی۔ صرف مہینوں کی بڑائی کے باعث وہ جبران پہ روب بھی خوب جماتی اور اس سے گاڑی بھی چھنتی تھی ان کی۔ حسن حسب معمول اپنے کاموں میں مصروف اور ساتھ کتابوں میں دھیان لگائے بیٹھا تھا، سو وہ چاروں ہی رات تک جاگتے رہے۔ باتوں کا دور ختم ہوا تو فائزہ نے آپ ہی اچھا کھیلتی تھی، لہٰذا فائزہ نے جھٹ ان کی پارٹنرشپ اختیار کر لی۔ زرش نے بہت گھور کر اسے دیکھا، البتہ جبران کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ تم آپ ہی کی پارٹنر بنو گی؟ اسے غصہ آیا تھا۔ ہاں، اور تم بھائی کی؟ فائزہ نے اطمینان سے کہا، پیکٹ میں سے کارڈز نکال کر جبران کو تھما دیے۔ نہیں، میں نہیں کھیلتی، تمہیں معلوم ہے کہ میں گڑبڑ کرتی ہوں۔ تم نے مجھے جبران بھائی کے ساتھ بٹھا دیا، وہ بپھر کے بولی اور فائزہ کو صاف انکار کر دیا۔ بالکل ٹھیک سمجھا تم نے، بس اسی وجہ سے میں نے تمہیں بھائی کا پارٹنر بنایا کہ تم فضول قسم کی گڑبڑیں چھوڑ دو۔ آپی اور جبران جانے کی ان باتوں میں گم تھے کہ ان کی خسر پھسر سن ہی نہ پائے۔ بکو مت، فائزہ کی بات سمجھ کر کانوں تک سرخ پڑ گئی۔ انتہا کی فضول لڑکی ہو تم، جھلا کر اسے ہاتھ رسید کیا۔ بات اس نے اس قدر اچانک کہی تھی کہ وہ غصہ ضبط نہ کر سکی۔ فائزہ ہنسنے لگی۔ اسی لمحے جبران نے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا اور جانے کیا سمجھا۔ فائزہ کے لبوں پر شوق اور شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اس نے غالباً یہی جانا کہ زرش کے چہرے پر کھلتے رنگ حیا کے ہیں۔ جب یہ گہرا اور طمانیت سے بھرپور تبسم لبوں کی تراش میں آ ٹھہرا۔ اوفو بھائی، تم دونوں لڑتی رہو گی یا کھیلو گی بھی؟ جبران کی توجہ اس طرح مرکوز دیکھتے ہوئے آپی ان کی جانب پلٹی، فوراً ڈپٹ کر گویا ہوئی۔ کھیلتے ہیں آپی، سب سے پہلے فائزہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ زرش کے تیول نظر انداز کر کے خاموشی سے اٹھ کر آپی کے برابر والے فلور کوشن پر ٹک گئی۔ ناچار اسے بھی جبران کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ جبران نے کارڈز آپس میں بانٹنے شروع کر دیے اور یوں کھیل سٹارٹ ہو گیا۔ جانے فائزہ کی باتوں کا اثر تھا یا وہ ہمیشہ ہی کی طرح اس کھیل میں کمزور تھی۔ وہ اور جبران لگاتار 2 گیم ہار گئے۔ کہاں ہو زرش؟ کیا کر رہی ہو تم؟ ہم کیا کھیل رہے ہیں لڑکی؟ جانے اس نے کون سا پتا ڈالا تھا کہ جبران نے اسے نرمی سے ٹوکا۔ اوہ، وہ غلط کارڈ دیکھ کر بڑی بری طرح سٹ پٹا گئی۔ تم اس قدر حواس باختہ کیوں ہو رہی ہو؟ آپی نے کھوجتی نظریں اس پر اٹکائیں۔ جی، وہ ان کے استفسار پر بھونچکا رہ گئی۔ یہ اعجاز قربت ہے آپی، بھائی کے ساتھ کھیلتے ایسی جان نکلتی ہے اس کی۔ فائزہ نے قطعی غیر متوقع جملہ بولا تھا۔ وہ بری طرح چکرا گئی۔ پہلا فقرہ تو انتہا درجے کا فضول تھا۔ فائزہ، اس نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ جبران البتہ خاموشی سے فائزہ کی باتیں اور اس کی خشمگی نگاہیں اور کڑے تیور دیکھ رہا تھا۔ لا حول ولا، کوئی کھا جائے گا تمہیں، ڈھنگ سے کھیلو تم۔ آپی نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھتے ہوئے گھورکا۔ اس کا دل چاہا فائزہ کو ایک ایسا تھپڑ رسید کرے کہ سدا یاد رکھے۔ وہ اسے ستانے کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں چھوڑتی تھی۔ جبران نے بھی جب دوبارہ کارڈ بانٹے اور نئے سرے سے اسے گیم سمجھانے لگا تو اس نے شعلہ بار نظروں سے ایک بار فائزہ کو دیکھا اور دیکھ لوں گی بچوں کا اشارہ کرتے جبران کی جانب متوجہ ہو گئی۔ گیم تو کیا خاک سمجھ میں آتا، سخت قسم کی نیند آنے لگی۔ جبران نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں گلابیاں تیرتی دیکھیں، فوراً کارڈ سمیٹ لیے۔ میرا خیال ہے کہ اب کافی رات ہو گئی ہے، تم دونوں کو سو جانا چاہیے، کل کالج بھی تو جانا ہوگا تمہیں۔ جبران نے بظاہر سرسری انداز اپنایا تھا۔ زرش نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی۔ فائزہ کو شرارت سوچ رہی تھی۔ تو کوئی بات نہیں، زرش کو جانے دو، تم ابھی ہمارے ساتھ بیٹھو۔ آپی نے اطمینان سے پیر سکیڑتے ہوئے یوں کہا جیسے وہ جبران مزید باتیں کرنے کے موڈ میں ہوں۔ اندھا کیا چاہے، 2 آنکھیں کے مستاق وہ تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور کپڑے جھاڑتے ہوئے تیز نظروں سے فائزہ کو گھورا۔ کتنا سوچا تھا اس نے کہ آپ ہی آئیں گی تو ان سے ڈھیر ساری باتیں کرے گی، مگر فائزہ کے بے وقت مذاق نے اس کا موڈ یکسر بدل دیا تھا۔
سو وہ جانے کے لیے اٹھ گئی۔ ٹھیک ہے بھائی، مجھے تو آ رہی ہے نیند، میں چلتی ہوں، شب بخیر، اس نے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ تو فائزہ بھی شرارت چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ در حقیقت نیند تو اسے بھی آ رہی تھی۔ آج کالج سے واپسی پر آپی کی آمد کے باعث آرام کرنے کو بالکل نہ ملا تھا۔ شام کو بھی زوار بھائی آ گئے تو اہتمام کرتے کرتے انہیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ ارے تم کہاں چلیں؟ آپی نے استحفامیہ نظریں اس پر لگائیں۔ بس مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں تو یوں ہی زرش کو چھیڑ رہی تھی، اب جا کر سوؤں گی، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی۔ اس نے جماہی روکتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 3 بج رہے تھے۔ شب بخیر کہتے ہوئے اس نے بھی اپنے کمرے کی راہ لی۔ اوہو، یہ دونوں تو چلی گئیں، خیال ہی نہیں رہا چائے بنوا لیتے۔ جبران کو اچانک خیال آیا، ایک تو تمہاری یہ چائے کی عادت، سچ روک پال رکھا ہے تم نے۔ آپی نے ہمیشہ کی طرح ناگواری سے کہا۔ جانے کیا چڑ تھی انہیں چائے سے، اور جبران تو گویا عاشق تھا چائے کا۔ شادی سے پہلے جب کچن میں آپی کا تسلط ہوتا تھا تو جبران سے اسی بات پر ان کی خوب چکچک ہوتی، اور وہ ہمیشہ کہتا، تم چلی جاؤ گی تو سکون ہوگا مجھے، جب دل چاہے گا چائے پیوں گا۔ اور حقیقتاً ہوا بھی یہی۔ آپی کے بعد زرش نے ڈیوٹی سنبھالی تھی، اور خوب سنبھالی تھی، اور تمہارا یہ چڑنا نہیں گیا آج تک۔ وہ بھی ہنسا۔ چڑنا کیسا؟ مجھے تو سخت وحشت ہوتی ہے چائے بنانے سے بھی۔ زوار کو بھی میں نے صرف 1 کپ صبح تک محدود کر رکھا ہے، اور صاف کہہ دیا ہے مجھ سے دوسرے کپ کی فرمائش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ان کی بات پر جبران نے خاصے چمبے سے انہیں دیکھا۔ ان کا لہجہ عجیب رونق لیے ہوئے ہوتا تھا۔ تھی تو وہ زرش کی بہن، مزاجاً اس سے بالکل مختلف تھی، اپنی بات پر ڈٹ جانے اور منوانے والی، خواہ اس میں کسی دوسرے فریق کی مرضی منشا شامل ہو کہ نہ ہو۔ شروع سے ان کا یہی رویہ رہا تھا۔ دیگر کزنز میں سب سے بڑی تھی، لہٰذا حاکمیت کا جذبہ، تحکمانہ انداز خود بخود ان کی ذات کا حصہ بن چکا تھا۔ امی اور چچی بیگم نے شروع میں تو غور نہیں کیا، جیسے جیسے سن شعور کو پہنچنے لگیں سب نے محسوس کیا۔ وہ دونوں چھوٹے بہن بھائی کو رعایا کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ ان پر سختی شروع کی گئی، مگر یہ عادت ان میں اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ اسے چھوڑنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ حتیٰ کہ جبران، فائزہ، حسن پر بھی ان کا روب و جلال چھایا ہوا تھا۔ امی اور چچی بیگم کو فکر ہوئی کہ ان کا یہی حال رہا تو کیا ہوگا سسرال میں گزارا، کس طرح کریں گی؟ خاندان میں بھی کوئی جوڑ کا نہیں کہ ایک خامی چھپ جائے یا برداشت کر لی جائے، مگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ شکر خورے کو شکر دے دیتا ہے، زوار کی شکل میں انہیں اپنے مزاج کو اس قدر تحمل سے برداشت کرنے والا شخص آخر مل ہی گیا۔ کیا کہیں کہ چاند کا داغ بھی چکور کو بھاتا ہے، سو وہ ان کے اس مضبوط آہنی منوا لینے والے لہجے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہیں پروپوز کر دیا۔ وہ ان کی کلاس فیلو تھے، 4 برسوں کا ساتھ تھا۔ ان کے مزاج سے تو پہلے دن آشنائی ہوئی تھی جب انہوں نے اپنے کلاس کے کسی لڑکے کو بری طرح ڈانٹ کے رکھ دیا تھا۔ فیصلہ ان کے حق میں دے دیا گیا، کیونکہ ان کی مرنجان مرنج طبیعت اپنے حاکمانہ جذبے کی تقویت کے لیے انہیں بہت ہی پسند آئی تھی۔ بہرحال اس چائے کو چھوڑو، اور یہ بتاؤ تم کب چھوارے کھلوا رہے ہو؟ اچھا خاصا چلتا ہوا گیم انہوں نے 2 منٹ میں کارڈ سمیٹ کر برابر کرتے ہوئے اس قدر غیر متوقع سوال کیا کہ جبران جھنجلا سا گیا۔ کتنا اچھا گیم جا رہا تھا، اس کے سارے کارڈز بہت اچھے تھے۔ آپ ہی کو اندازہ تھا غالباً جب ہی ہار منظور نہ کی۔ بھئی یہ کیا شرافت ہے؟ اوفو، اب چھوڑو بھی، میں تو کھیل کھیل کر بور ہو گئی۔ انہوں نے صوفے کی بیک سے سر ٹکایا اور کسلمندی سے بولی، پھر فوراً اپنا سوال یاد آنے پر گویا ہوئیں۔ میں نے سوال کیا تھا چھوارے کب کھلا رہے ہو، جواب دو اس کا۔ بھئی میرے پاس کوئی کرسٹل بال یا جام جمشید نہیں کہ اس میں دیکھ کر قسمت کا حال بتا دوں، جب وقت آئے گا چھوارے بھی کھلوا دیں گے۔ آنکھوں میں یکدم زرش کا سراپا در آیا، ڈھیروں روشنی نے جیسے جگمگاہٹ بھر دی۔ لبوں پر مدھم مسکراہٹ سے جاتے ہوئے اس نے کہا، تو آپ ہی نے بے حد غور سے اسے دیکھا، جیسے کسی نتیجے پر پہنچتے فوراً بولی، ارے ارے مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، یہ چکر کیا ہے بھائی؟ کون سا چکر؟ ہاتھوں کا تکیہ بنا کر وہ بھی کارپیٹ پر لیٹ گیا تھا۔ اطمینان سے متبسم لہجے میں استفسار کیا۔ موصوف کہیں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ان کا انداز ٹٹولتا ہوا تھا۔ وہم ہے تمہارا؟ وہ ہنسا، جی نہیں، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ آپ ہی نے ڈپٹنے والے لہجے میں کہا تو وہ ہنس پڑا، بڑا تجربہ لگتا ہے، جبران نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ مشاہدہ تجربے سے زیادہ وسیع ہے، تم ٹالو مت، بتاؤ مجھے یہ کس نے تمہاری بیکار فضول سی آنکھوں میں اتنی روشنیاں بھری ہیں؟ انداز تفتیشی تھا۔
जिब्रान को हंसी आने लगी कि इस लतीफ़ मौजू पर भी वह वकील इस्तगासा की तरह जरह कर रही थी। बस है कोई। तसव्वुर में ज़रश के सरापे को देखते हुए आंखें मूंद कर बुड़बुड़ाया, इससे बात भी की या अभी तक महज ख्याली पुलाव पक रहा है? बात तो कुछ ऐसी है, मुझे यकीन है वो मेरा मुकद्दर बनेगी। आप ही की बात पर वो संजीदगी से कहता उठ बैठा, माशाअल्लाह, इजहार तमन्ना किया है कि नहीं, और वस्ल के ख्वाब भी देख डाले। इस्तहज़ाइया हंसी। मोहब्बत की कोई ज़ुबान नहीं होती कि इसमें इजहार तमन्ना किया जाए। यह तो एक जज्बा है जो दूसरा दिल आप ही आप समझ लेता है। सो जब वो समझ लेगी, इंशाअल्लाह वस्ल की हसीन घड़ियाँ भी आ ही जाएंगी। इसे इनका अंदाज़ बुरा तो लगा, मगर रसान से बोला। लहजे में यकीन और इत्मीनान की मिली जुली कैफियत थी। चलो अल्लाह करे ऐसा ही हो। हनूज़ वही अंदाज़ था, मगर वो नज़रअंदाज कर गया। अब घर आए मेहमान से क्या कहता, यूँ भी उनके नेचर का अच्छी तरह अंदाज़ा था। जब ही वो अक्सर उनकी नागवार बातें टाल जाता था। वही क्या, इनका काटदार तमस्खुराना लहजा तो सभी इग्नोर कर देते थे, सिवाय ज़रश के, जो घंटों उनका रवैया सोच सोच कर ख़ुद को जलाती थी। अभी तक तुमने लड़की का नाम नहीं बताया। उनकी जरह जारी थी। जवाबन वो कुछ कहने के बजाय गुनगुनाने लगा। जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम, सोच रहा हूँ किससे पूछूं उस लड़की का नाम। इसकी गंभीर और भारी आवाज़ नगमे में ढली तो आपी लम्हे भर के लिए हैरान और लाउंज से निकलकर किचन की तरफ जाती ज़रश साकित रह गई। पानी पीने के लिए आई थी, मगर रास्ते में ही रुक गई। आवाज़ का जादू पाबाई जंजीर कर गया था। जिब्रान भाई और मोहब्बत, गो के बात इस कदर हैरान कुन भी ना थी, मगर वो मुताज्जिब ज़रूर हो गई। अच्छा भाई बस करो अब, तुम तो पूरे शायर हो गए हो भाई। आप ही ना टोकती, शायद यूँ ही गाता चला जाता। उनके टोकने पर कुछ खफीफ सा होके हंस पड़ा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अलबत्ता ये बताओ, कब मिलवा रहे हो उससे? उन्हें हकीकतन इश्तियाक हो चला था। बहुत जल्द? जिब्रान ने लहजे से सनसनी जाहिर की। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पर? उन्होंने जल्दी से सवाल किया। हाँ, मगर अगले साल की। उसने भी इसी अंदाज में जवाब दिया तो आप इन्हें से कुशन खींच मारा। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। फ़ाइज़ा को सुनाऊंगी। ज़रश दरवाजे से हटकर किचन की जानिब मुड़ते हुए सोचने लगी और आगे बढ़ गई। तुम्हारे प्यार का अंदाज़ा खुद मुझे भी नहीं। वो लफ्ज़ कैसे तराशूं जो तुमको बतलाएं, कहाँ से ढूंढ के लाऊं, अभी बने ही नहीं। वो आईने जो तुम्हें मेरे ख्वाब दिखलाएं। वो मोहब्बत की पुरखार वादी के सफ़र पर तन्हा गामज़न थी, फिर भी मसरूर और शादां थी कि इस वादी के तो खार भी फूल लगते हैं। मगर ये बात कि जिब्रान भी किसी की मोहब्बत का असीर है, इसे दश्ते हैरत में खींच ले गई थी। इसे ये बात जानकर जाने क्यों बहुत अच्छा लगा था। शायद इसलिए इस घर में इसके बाद जिब्रान पहला शख्स था जो इस राह का मुसाफिर बना था। गो कि वो ज़रश का हमसफ़र नहीं था, मगर इसके लिए यही बहुत था कि इसके घर में मोहब्बत का फ़लसफ़ा कोई और भी जानता है। किसी और के दिल में भी वही राग छिड़े हुए हैं जिनकी मद भरी मौसीकी ने इसकी समातें ख्वाब ख्वाब कर रखी थी। सुबह उठते इसने पहली फुर्सत में धमाका खेज़ खबर फ़ाइज़ा को सुनाई। गुमान गालिब था वो ये बात सुनकर उछल ही पड़ेगी, मगर दूसरी जानिब खिलाफ़ तवक्को एक ज़ोरदार चीख के बजाय धीमी सुनने को और बड़ी गहरी नज़रें देखने को मिली। हूँ से मतलब? तुम पहले से वाकिफ़ हो इस बात से? इसने आंखें निकाली। भाई जाहिर है मेरा भाई है, मुझे नहीं पता होगा तो और किसे होगा? फ़ाइज़ा ने इंकशाफ किया। और तुमने मुझे बताया भी नहीं? इसे फ़ाइज़ा के इस तरह शेयर ना करने पर सख्त ताव आया। इसकी तो वो एक एक बात हलक से उगलवा लिया करती थी, और इस मामले में ऐसी राजदारी। क्या फ़ायदा, तुमने कौन सा कंसीडर कर लेना था? फ़ाइज़ा इसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए बुड़बुड़ाई। क्या कह रही हो? इसके खाक पर लेना पड़ा। यही कि हर बात बताने की नहीं होती। आंखें खुली रखते हुए दिमाग से काम लो तो सब पता चल जाता है। लोग कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। भला तुम कैसे बेखबर रही अब तक? ओफ़ो, तो जिब्रान भाई कौन सा मुझसे हर बात शेयर करते हैं जो मुझे पता चलता? इसकी सुई वहीं अटकी हुई थी। ला हौल वला कुव्वत। फ़ाइज़ा का दिल चाहा अपना सर पीट ले या फिर इसे धुनक के रखते। नहीं भाई, इन तेलों में तेल नहीं। आप किस पत्थर से सर फोड़ दें? इस फजूल लड़की के पास अकल है, न फहम है, न हक। ना हक मारे जाएंगे। वो दिल ही दिल में बड़ी दर्दमंदी से सोच रही थी। वैसे ये बताओ, वो लड़की है कौन? फ़ाइज़ा के चेहरे पर गुस्से झुंझलाहट के बजाय ज़ेद छोड़ने का तासुर आया था।
اس نے جھٹ بڑے اشتیاق سے دریافت کیا۔ وہ بالکل مثل ماہتاب ہے، خلاف توقع، فائزہ نے نرمی سے کہا۔ اس نے ہنستے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ لہٰذا وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب چاند چڑھے گا تو ہر کوئی دیکھے گا، تم بھی دیکھ لینا اس وقت۔ اگلے لمحے وہ اسے سخت لہجے میں بلند آواز میں ڈانٹ کر ایک طرف ہٹاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ہاں، فضول لڑکی سمجھتی ہے کہ وہ مجھے نہیں بتائے گی تو مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فائزہ کی حرکت پر وہ بھی بڑبڑاتی باہر نکل آئی۔ خیال تو اس وقت سے ہی تھا کہ جبران سے خود پوچھے گی۔ اسے دیکھ کر ہمت جواب دے گئی۔ اس کی سنجیدگی، متانت کے آگے اس کی زبان، جو کہ بقول امی کینچی کی طرح چلتی تھی، بند ہو جاتی۔ آپ ہی کے باعث پورا دن یوں ہی گزر گیا، اور رات کو وہ زوار بھائی کے آنے پر اگلے ہفتے ویڈنگ اینیورسری کے پروگرام کو فائنل شکل دے کر سب کو انوائٹ کر کے رخصت ہو گئی، اور اس کی خواہش کہ وہ آپ ہی کو اپنے ساتھ بٹھا کر ڈھیر ساری باتیں کرے گی یوں ہی رہ گئی۔ ڈارک پرپل گھیر والے انگرکھے کے ساتھ باٹل گرین چوڑی دار پاجامہ اور ٹیشو کا بڑا سا گرین دوپٹہ بڑے سٹائل سے دائیں شانے پر ڈال کر بائیں بازو پر لپیٹے جب وہ نیچے آئی تو سیڑھیوں کے سامنے کوریڈور میں کھڑے جبران کی نظریں اس پر اٹھیں تو لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گئیں۔ گولڈن براؤن بالوں کو پرپل پراندے میں باندھے، کانوں میں سلور جھمکیاں پہنے، کلائیوں میں ڈھیروں ہم رنگ کانچ کی چوڑیاں سجائے، وہ اپنے دوپٹے سے الجھتی آخری سیڑھی پر کھڑی اتنی خوبصورت لگی کہ بے اختیار جبران نے کیمرہ آنکھوں سے لگا کر بنا اسے متوجہ کیے تصویر کھینچ لی۔ اوہ! کلک کی آواز اور فلیش کی روشنی پر اس نے چونک کر سامنے سر اٹھایا۔ سامنے ایک گرے شلوار سوٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر ستائش اور توصیف تھی کہ وہ جھجک سی گئی۔ کیا ہوا؟ میرا تصویر لینا تمہیں برا لگا؟ وہیں آخری سیڑھی پر ٹھٹک کر رک گئی تو جبران کیمرہ کندھے سے لٹکائے قریب چلایا۔ وہی مخصوص مدھم لہجہ تھا، قیمتی پرفیوم کی مسحور کن خوشبو کا ایک جھونکا لمحے بھر کے لیے زرش کا حصار کر گیا۔ نہیں تو؟ اس نے بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ آپ مجھے متوجہ کر دیتے تو اچھا ہوتا، میں دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی کہ آپ نے تصویر لے لی۔ آخری سیڑھی بھی اتر آئی۔ جبران نے دیکھا سلور اور پرپل ریشم کے دھاگوں کے کام والے خصے میں اس کے گندمی رنگت والے پیر بہت اچھے لگ رہے تھے۔ جانی محبت کے رنگ ہوتے ہیں یا پھر کچھ اور کہ من چاہی شخصیت کے تو بال بال میں موتی پروئے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر نظر کا اپنا حسن ہوتا ہے، شاید اسی لیے نگاہ جس پر ٹھہر جائے وہی وینس، وہی اپسرا۔ کوئی بات نہیں، نیچرل تصویریں زیادہ اچھی آتی ہیں۔ مجھے کیمرہ چیک کرنا تھا، تم سامنے نظر آئیں تو بٹن پہ ہاتھ چلا گیا۔ وہ اپنی بے خودی چھپانے کی خاطر قصداً جھوٹ بولا۔ اینی وے تھینک یو، اگر یہ تصویر اچھی آئے تو مجھے دے دیجیے گا۔ اپنی معصوم مسکراہٹ کے جلوے بکھیرتی فائزہ کے کمرے کی طرف چلتی۔ اوہو، انارکلی جلوہ افروز ہوتی ہیں۔ فائزہ نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اندر آتے دیکھا تو آئی لائنر لگاتے بڑی توصیفی لہجے میں بولی۔ جواباً وہ ذرا سا جھینپ گئی۔ خیریت شہزادہ سلیم کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ پلٹ کر شوخی سے سوال کیا تو وہ یکدم گڑبڑا گئی۔ کون شہزادہ سلیم؟ اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ فائزہ زیات کے متعلق اس کے دل کا حال جانتی ہے؟ یہ خیالی روح فرسا تھا۔ بے حد گھبرا کے سوال کیا۔ بھائی وہی شہزادہ سلیم جس نے انارکلی کو تو دیوار میں چنوا دیا، بعد میں شیر افغن کو مروا کر اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ خود کو تنقیدی نظروں سے دیکھ کر مطمئن ہو کر فائزہ اس کی جانب پلٹی اور اس کی اڑی اڑی رنگت کا نوٹس لیے بغیر بڑے اطمینان سے اس کی بات کا مفصل جواب دیا۔ اس کا رنگ آہستگی سے واپس لوٹ آیا۔ لا حول ولا قوت، تم نے تو مجھے ڈرا دیا تھا۔ اس نے ناگواری سے بھویں سکیڑی۔ کیوں؟ کیا سلیم تمہیں بھی چنوانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ فائزہ نے پاس آ کر بڑے انداز سے رازدارانہ لہجے میں سوال کیا۔ اللہ نہ کرے۔ سچ مچ دہل کر بولی تو فائزہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ فائزہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جبران کی توصیفی نظریں اس پر اٹھتی دیکھیں، فوراً حسن کو ساتھ کے ساتھ ان کی گاڑی میں بٹھا کر اسے اپنے ساتھ کھینچ لائی، اور وہ اس طرح فائزہ کے جارحانہ انداز میں گھسیٹنے پر سخت سست نہ تھی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تمام رستے جبران کی سماعتوں کی فضا اس کی ہنسی اور آواز سے خواب خواب ہوتی رہی، اور جب وہ آپ ہی کے گھر پہنچے تو بزرگوں کے اندر جاتی وہ بھی ان کے پیچھے گاڑی لاک کر کے چلا آیا۔ تھینک یو فائزہ، اس کے قریب آ کر جبران نے فائزہ سے کہا تو وہ استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا زرش؟ آر یو آل رائٹ؟ فائزہ سے پہلے جبران اس کے پاس چلا ہے، بہت تشویش سے اپنائیت بھرے لہجے میں بولا۔
फ़ाइज़ा दूसरी तरफ कसदन मुतवज्जा हो गई थी। इसने फ़ाइज़ा की नज़रों के ताक़ुब में निगाहें दौड़ाईं तो लाउंज के दरवाजे से बाहर आते ज़यात पर जा टिकी। फ़ाइज़ा दूसरी तरफ बढ़ चुकी थी। अम्मी वगैरह भी आपी की सास के पास जा बैठी। इसने देखा वाइट सिल्क के कुर्ते और सफ़ेद शलवार में बेहद फ्रेश लग रहा था। अपने यार दोस्तों के दरमियान कह बखेरता, खुशदिली से हंसता मुस्कुराता, वो इसे जाने महफिल लगा। लॉन में बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था। चूँकि पहली एनिवर्सरी थी लिहाजा आपी ने बहुत एहतमाम किया था। ज़र्कबर्ग साड़ी में उनका सरापा बेहद हसीन लग रहा था। जवार भाई भी हमेशा की तरह अच्छे लग रहे थे। ज़याद ने जिब्रान और साद वगैरह को देखा तो उनके पास चला आया। वो भी सुस्त कदमों से उनके साथ ही थी। इसे देखकर ज़रा फासले पर रुक गई। भाई आप तो ऐसे तैयार हैं जैसे आपकी ही एनिवर्सरी हो। साद ने मुस्कुरा कर कहा तो बेसाख्ता हंस पड़ा। वो हंसता है तो लगता है कि जैसे दिल के मंदिर में लगें बजने सुरीली घंटियाँ आहिस्ता आहिस्ता। वो इसकी हंसी में गुम खड़ी थी जबकि साद के पुरमिज़ा अंदाज पर वो कह रहा था, खुदा आपकी ज़ुबान मुबारक करे, अल्लाह वो दिन जल्द लाए। वो खुशदिली से बोला था। जिब्रान को भी हंसी आ गई। साद ने सदक दिल से आमीन कहा तो इन तीनों का बेसाख्ता कहा गूंज गया। ज़रच ने कदरे चौंक कर इन्हें देखा। यूं ही मुस्कुराते हुए आपी के पास चली आई। उन्हें बुके थमा दिया और गले से लगाकर विश किया। उनकी नज़रों में भी बेहद सत्ताइश थी। जैसे जवार भाई ने अल्फाज दिए, भाई आज तो लग रहा है कि मुगलिया दास्तान का कोई किरदार जिंदा हो के यहाँ आ गया। वो इनकी तारीफ पर सुर्ख से हो गई और नज़रें आप ही आप थोड़ी दूर खड़े ज़यात पर जा टिकी। बस वही लम्हा कातिल लम्हा था। आप ही की नज़रों ने भी इसकी निगाहों का ताक़ुब किया। फिर जब लौटी तो वो यूं ही खड़ी थी, चेहरे पर ढेरों रंग और आंखों में झिलमिलाहटे लिए। आप ही की सदा की नब्ज़ शनास फितरत पल में सारी बात समझ गई। आहिस्तगी से इसके करीब आई, नामहसूस तरीके से उसका कंधा हिलाया। हेलो, कहाँ खो गई भाई? अब इस कदर भी हसीन नहीं मेरा देवर। उनका मुतबस्सम अंदाज और इस कदर वाज़े जुमला उनके हवासों पर बिजली गिरा किया। शुक्र हुआ कि कोई और मुतवज्जा नहीं था। इसने सहम कर आपी को देखा। बड़ी दिलावेज मुस्कुराहट लबों पर बखेरे खड़ी दोस्ताना अंदाज में इसे देख रही थी। नहीं आपी, ऐसी तो कोई बात नहीं। लरसते लहजे और कांपती आवाज़ में इसने कुछ ऐसे घबराए हुए लहजे में कहा कि साथ खड़ी फ़ाइज़ा चौंक के मुतवज्जा हुई। क्या हुआ? फ़ाइज़ा मुतरद्दिद होकर पूछ रही थी। कुछ नहीं, मेरा ख्याल है कि ज़रश की तबीयत ठीक नहीं। इसके बजाय आपी ने जवाब दिया। नज़र लग गई क्या? फ़ाइज़ा को बेवक्त की शौक़ी सूझी थी। किसकी नज़र? आपी ने तीखेपन से सवाल किया। लहजे का तनाव सिर्फ वो महसूस कर सकी जबकि फ़ाइज़ा शौक़ी से मुस्कुराने में मसरूफ़ हो चुकी थी। आपी ने सवालिया खोजती नज़रों से बारी बारी दोनों को देखा और जाने क्या कयास किया मज़ीद कुछ कहे आगे बढ़ गई। फ़ाइज़ा ने देखा इसकी रंगत जर्द पड़ गई थी। वो भी कुछ घबरा सी गई और इसका हाथ थाम कर कुर्सियों की तरफ ले आई और इसे बिठाकर तेज़ी से पानी के लिए दौड़ी। फ़ाइज़ा से पहले जिब्रान इसके पास चला आया। बहुत तशवीश से अपनायत भरे लहजे में सवाल किया। जी मैं ठीक हूँ। इसका दिल आप ही के अंदाज पर बैठा जा रहा था। दोनों हाथों में सर को थामे इसने कहा, लग तो नहीं रहा। वो कुछ परेशान से इसके साथ वाली कुर्सी पर टिक गया। ये लो कोल्ड ड्रिंक। ज़रा ही देर में फ़ाइज़ा बोतल की जिन की तरह हाजिर थी। फिर इसका दिल वहाँ बिल्कुल नहीं लगा। तमाम वक्त यही महसूस होता रहा कि आप ही इसकी और ज़यात की निगरानी कर रही हैं। इसकी अदम तवज्जही और सरासीमगी महसूस करते हुए फ़ाइज़ा जिब्रान के साथ इसे लेकर जल्द ही लौट आई। लफ्ज़ पढ़ना तो मेरी आदत है, तेरा चेहरा किताब सा क्यों है? वो जानती थी कि जो राज वो 1 साल से छुपाती चली आ रही थी वो आप ही की तेज़ फहमी के बाइस अफशा हो चुका था और ये भी इसे मालूम था कि इसके नताइज अवाक़िब क्या होंगे। मगर दिल में एक उम्मीद भी थी कि शायद ऐसा ना हो जैसा कि वो सोच रही है। कितनी अजीब बात थी कि आप ही और वो एक दूसरे के जैसे दिल में उतरे हुए थे। उसका चेहरा खुली किताब था तो आप ही के पास गहरी जांच लेने वाली नज़र थी। लम्हे भर में इसके दिल के नेहा खानों में छुपा राज पा गई थी वो। और ख़ुद आप ही भी तो इसके लिए ऐसी ही थी जैसे शफ़ाफ पानी की तह में बैठा हुआ स्याह पत्थर। वो भी तो इन्हें दीदाई बसारत से पढ़ लेती थी। उनकी आँखों से, उनके तेवरों से उनके मुमकिन फ़ैसलों को कयास कर लेती थी। सब ने ही इसके अंदर ये तब्दीली महसूस की। इसे इसकी तबीयत ख़राबी पर महमूल करते हुए इसे एक अच्छे डॉक्टर के पास पापा लेकर गए। डॉक्टर क्या कहता, महज कमज़ोरी का कहकर कुछ टॉनिक इसे लिखती है।
اور پاپا پہلی فرصت میں وہ خرید بھی لائے۔ اب گاہے بگاہے وہ اس سے پوچھتے رہتے کہ دوا وقت پہ لے رہی ہو۔ امی، سعد اور فائزہ کا بھی سخت پہرا تھا۔ جتنا وہ تنہائی چاہتی تھی اس قدر سب اس کے گرد جمع رہتے۔ آس کے دیپ بجھ جائیں تو نا امیدی کا گھور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ گو کہ آپ اس روز کے بعد سے نہیں آئی تھی، مگر ان کی جانب سے یہ خاموشی اسے کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ دماغ تھا کہ سوچ سوچ کر سن ہوا جا رہا تھا، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ کسی کو حال دل سنا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس میں اس کا بھرم بھی جاتا اور آپی کی جو تذلیل ہوتی وہ علیحدہ تھی۔ جبران البتہ بہت خاموشی سے اسے نوٹ کرتا رہتا تھا۔ اس کا لہجہ، انداز، ہر وقت کی خاموشی کچھ ایسی معمولی بات نہیں تھی۔ اس روز تو اپنی اتنی خوش تھی، پھر یکدم اسے کیا ہوا؟ سب کی طرح وہ بھی متعجب تھا۔ تقریب کی تصویریں بے حد اچھی آئی تھیں۔ صرف چند تصاویر جبران نے لی تھیں، جبکہ بقیہ آپی نے خود کھینچی تھی۔ ان میں زیات کی بھی کچھ تصویریں تھیں، جس میں اس کے ساتھ اس کی کزن سمن خاص طور پر نمایاں تھی۔ اسے لگا جیسے آپی نے خاص طور پر اسے ہی دکھانے جتانے کے لیے وہ تصویریں بھیجی ہیں۔ اس کی وہ تصویر جو جبران نے اچانک لی تھی، البم میں نہیں ملی۔ خود اسے خیال بھی نہ آیا تھا۔ آج کل ذہن جس الجھاؤ کا شکار تھا، ایسے میں اسے سب کچھ بھولا ہوا تھا۔ جبران کا خیال تھا کہ وہ اس سے تقاضا کرے گی، مگر اس نے پوچھا ہی نہیں، سو وہ بھی خاموش ہو رہا۔ زرش، زرش اس وقت بھی ٹیرس پر کھڑی جانے کن سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی کہ فائزہ اسے پکارتی چلی آئی۔ اس نے آواز سن لی تھی، مگر قصداً مڑ کر نہیں دیکھا۔ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس کے ہر انداز سے بیزاری تھی۔ تمہیں ہوا کیا ہے آخر؟ کیوں سب کو پریشان کر رکھا ہے تم نے؟ اس کے کوفت بھرے لہجے میں بات کرنے سے فائزہ یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس ایسی میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ رخ موڑتے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیوں ٹھیک نہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا آخر۔ فائزہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کا شانہ پکڑ کر رخ اپنی جانی موڑا اور اس کی ویران آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی۔ پلیز فائزہ، اس وقت مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اسے سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے تو عاجزی سے التجا کی۔ ہرگز نہیں، تم چل کر میرا ادھورا پڑا کرتا مکمل کرو۔ میں نے تمہاری فیورٹ ڈش مسالے والی بریانی پکائی ہے، چلو فٹافٹ نیچے آ جاؤ۔ اس کی التجا پر کان نہ دھرتے ہوئے بالآخر فائزہ اس کے لاکھ احتجاج کرنے کے باوجود اسے نیچے لے ہی آئی۔ تم یہاں بیٹھ کر اسے مکمل کرو جب تک میں ذرا چاولوں کو دم دے لوں۔ فائزہ اسے کام سے لگا کر کچن کی طرف جا چکی تھی۔ امی اور چچی بیگم کچھ ضروری خریداری کے لیے حسن کو لے کر شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ پاپا اور چچا جان آفس میں تھے۔ گھر میں بہت خاموشی تھی۔ جبران کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ اکثر دوپہر میں لنچ کے لیے گھر آتا تھا، ابھی تک وہ بھی غائب تھا۔ کرتے میں بھی ترپائی باقی تھی کہ وہ بھی چلایا۔ اسے کئی دن بعد نیچے دیکھا تو خوشگوار تاثر محسوس کر کے مسکرا دیا۔ وہ اپنے خیال میں گم بیٹھی تھی۔ ہیلو بھائی، آج اس غریب خانے کو کیسے رونق بخشی آپ نے؟ میں فائزہ کا کرتا مکمل کر رہی تھی، اس نے ترپائی کرتے ہوئے سر جھکائے جھکائے جواب دیا۔ جبران نے محسوس کیا جس کی آنکھوں میں جمود کی وہ کیفیت کسی حد تک کم تھی کہ اسے دلی سکون محسوس ہوا۔ گھر میں بہت خاموشی لگ رہی ہے۔ کچھ دیر ایک جامع چپ ان کے درمیان بولتی رہی تو جبران نے بات شروع کی۔ ہاں، سب لوگ گھر سے باہر جو ہیں۔ یوں بھی ہمارے گھر میں بچے بھی تو نہیں کہ ان کے دم سے ہی رونق لگے۔ اس نے سنجیدگی سے سر اٹھا کر کہا۔ جبران اس کے آخری فقرے پر زیر لب مسکرایا۔ آپ ہنسے کیوں؟ اب کہ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہاری بات سن کر امی کا خیال آ گیا۔ وہ بھی تقریباً ہر دوسرے دن یہی بات کہتی ہیں اور تقریباً اسی انداز میں۔ کسل مندی سے پیر پھیلاتے ہوئے ہنس کر بولا تو وہ بھی مسکراتی۔ تو آپ ان کی بات مان لینا، کر لیں شادی۔ وہ بھی جبران کی سنگت میں کچھ بہل گئی تھی، جب ہی دل کی الجھی گتھیوں سے دھیان ہٹا کر اس کی طرف باقاعدہ متوجہ ہوئی۔ شادی؟ وہ بڑے انداز سے ہنسا۔ کس سے؟ سوال ہوا۔ اس سے ہی جسے آپ پسند کرتے ہیں، بلا ارادہ کہہ گئی، یکدم زبان دانتوں تلے دبا لی۔ کیا؟ وہ حیرت کے جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ تم سے کس نے کہا یہ سب؟ بڑی متانت سے سوال ہوا۔ زرش نے ذرا کی ذرا سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر ازل کی نرمی حلاوت دے کر کہنے لگی۔ آپ اس روز آپ ہی کو بتا رہے تھے تو سنا تھا۔ اس نے یوں سر جھکائے ہوئے کہا جیسے کسی جرم کا اقرار کر رہی ہو۔ اوہ! جبران نے ہونٹ سکوڑے۔ زرش نے دیکھا کہ وہ ناراض نہیں تو ہمت کر کے مزید کہا۔ ویسے وہ ہے کون؟ چہرے پر اشتیاق سجائے وہ استفہامیہ نظریں اس پر فوکس کیے بیٹھی تھی۔ بس ہے کوئی،
इसी अंदाज में कहा जैसे आप ही को जवाब दिया था। जाहिर है जब आपने आप ही को नहीं बताया तो मुझे क्या बताएंगे। यकदम सुबकी के एहसास से इसके रुखसार तबके, लहजे में अजनबियत खुरदरापन दर आया। जिब्रान ने बनज़र गौर इसके अपनाइयत भरे अंदाज में रोटने के मंजर को देखा। वो खफा खफा सी धागे लपेट कर रखते हुए जिस अदा से बोली थी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। नहीं ऐसी बात नहीं, तो मुझे सबा आप ही से ज़्यादा अजीज़ हो, बेख्तियार कह बैठा था। ज़रश ने चौंक की नज़र उठाई। मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ मगर तुम खुद ही इतने फासले पर रहती हो कि कैसे कहूँ। बज़ाहिर सादा से लहजे में दिल की बात कह रहा था। ज़रश इसके लहजे पर मुतमईन हो गई। तो फिर बताइए। इसने दोबारा इसे इश्तियाक का मुज़ाहिरा किया। बताऊंगा ज़रूर, आई प्रॉमिस, मगर आज नहीं, इसने ठहरे हुए अंदाज में कहा। कब? जब वो राज़ी हो जाएगी। तो क्या वो राज़ी नहीं हुई अभी तक? मालूम नहीं, हो सकता है कि वो इनकार कर दे। मुबहम अंदाज में मुस्कुराया था। हो ही नहीं सकता, आप इतने अच्छे, इतने स्मार्ट, क्वालिफाइड हैं, वो क्यों मना करेंगी? तो जिनमें ये खूबियाँ हों उन्हें इनकार नहीं किया जाता। नहीं, इसने पूरी यकीन अंदाज में कहा। ओके, फिर देखते हैं कि क्या होता है। बेफिक्री का मुजाहिरा करते हुए शान ने झटकता उठ खड़ा हुआ। आप मुझे टाल रहे हैं? वो खफकी से बोली। आई सैर नहीं, तुम्हें बताऊंगा इसका नाम बहुत जल्द। वो मजबूत लहजे में बोला तो ज़रश ने सादगी से कहा। तो कीजिए प्रॉमिस। प्रॉमिस? जिब्रान ने इसकी आंखों में देखकर नरमी से कहा। एन इसी लम्हे फ़ाइज़ा अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर देखकर शोखी से खनकारी। जिब्रान ने चौंक कर धीरे से इसे देखा और फ़ाइज़ा के शौक अंदाज में किए गए सलाम का जवाब देकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ये सब क्या था? मुस्कुराती आंखें घुमाती इसके पास चली आई, मगर वो इस वक्त काफ़ी एक्साइटेड भी थी। ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकी। फ़ाइज़ा, मैं जिब्रान भाई से उनकी शादी के बारे में बात कर रही थी। यकीन करो, शादी करने वाले हैं। किससे? तुमसे। फ़ाइज़ा ने बौखलाहट का अजीम मुजाहिरा करते इसका दुपट्टा दांतों तले दबा लिया। बको मत, बुरी तरह चिढ़ गई। सॉरी, मैं दरअसल ये पूछना चाह रही थी कि किससे करेंगे, कुछ अता पता बताया? मासूमियत से आंखें झपकाते हुए सवाल किया। नहीं, अभी तो नहीं बताया, कह रहे थे कि मुझे एक दिन ज़रूर बताएंगे, इसने मसरूर अंदाज में कहा। माशाल्लाह, चलो कुछ तो प्रोग्रेस हुई। फ़ाइज़ा सर खुजाते बुड़बुड़ाई। क्या मतलब? वो ठिठकी। मतलब ये कि मेरा सर। अरे सारा खाना ठंडा हो रहा है, तुमने मुझे यहाँ बातों में लगा लिया, अहमक लड़की। वो इसकी बात घुमाकर उठ खड़ी हुई। चलो खाना खा लो, मुझे सख्त भूख लग रही है। और बाकी घर वाले? फ़ाइज़ा के बौखलाने पर उठ खड़ी हुई। वो बाद में खा लेंगे, तुम जाकर भाई को बुलाओ, खाना लगा रही हूँ मैं। तेज़ी से इसे हदायतें देती किचन की तरफ चलती तो वो जिब्रान के कमरे की तरफ आ गई। दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं मिला। आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई। वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ ने बता दिया कि वो अंदर है। वो कुछ कहे बगैर पलटने को थी कि नज़रें बिला इरादा जिब्रान के वार्डरोब की तरफ उठ गईं, जहाँ से कपड़े बड़ी उजलत में निकाले गए थे। कुछ कपड़े बाहर निकलने को बेताब थे। उसने आगे बढ़कर उन्हें अंदर रखना चाहा तो कोट हैंगल छोड़कर इसके हाथ में आ गया। ला हौल वला कुव्वत। कपड़ों की इस दीवानगी पर सटपटा गई। भूख ज़ोरदार लग रही थी। ऐसे में यहाँ रुकना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। यूँ भी नहीं चाहती थी कि जिब्रान बाहर निकले तो इसे अपनी अलमारी में कुछ रखते हुए देखे। इसलिए जल्दी से हैंगर उठाकर कोट अटकाना चाहा तो हाथ जेब पे जा पड़ा। कुछ रखा हुआ था। इसे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ तो 2 उंगलियां डालकर अंदर रखी तस्वीर निकाल ली, जिसकी पुश्त पर जिब्रान की खूबसूरत राइटिंग में नासिर काज़मी के 2 अशार लिखे थे। गम है या खुशी है तो मेरी ज़िंदगी है तो मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तो। इसने सूरत से तस्वीर पलटकर देखी तो जैसे अपनी जगह जम के रह गई। वो तस्वीर किसी और की नहीं, खुद इसी की थी। पर्पल और बॉटल ग्रीन सूट में आप ही के यहाँ जाते हुए जिब्रान ने अचानक ही खींच ली थी। कितनी हसीन लग रही थी वो अपने खूबसूरत सरापे समेत। मेरे खुदा, इंकशाफ था या धमाका। इसने सर हाथों में थाम लिया। 1 हफ्ते से वो बड़ी खाला के पास आई हुई थी। जिब्रान से मुतालिक इंकशाफ ने इसका दिल इस तरह बोलाया था कि वो पहली फुर्सत में खाला के पास चली आई थी। उनकी एक ही बेटी थी जो अब शादी होकर अपने घर रहती थी। घर में सिर्फ खाला होती थी। खालू आजकल शहर से बाहर गए हुए थे। इसने मौका गनीमत जाना और यहाँ चली आई। दोनों खाला भांजी को एक दूसरे की मैयत में वक्त गुजारना, दिल बहलाना आसान सा हो गया था। घर का फ़ोन ख़राब था, इसलिए वो कतई तौर पर उनसे कटी हुई थी और यही वो चाहती भी थी। खाला जान के साथ वो इन तमाम बातों को भुलाना चाहती थी जो वो आप ही की ज़ुबानी सुन कर आई थी।
जिस रोज़ जिब्रान के दिल का राज इस पे आश्कार हुआ था उसी शाम आप ही आई थी मिठाई समेत कि उनके देवर ज़याद की मंगनी समन से तय हो गई थी। ये दूसरा बम था जो इसके हवासों पे फटा था। वो संभलती भी तो कहाँ तक, दिल पे घल कर आंसुओं की सूरत अख्तियार करने लगा तो इसे खुद को संभालना दुश्वार हो गया। इतना तो वो समझती थी कि आप भी जल्द ही इस सिलसिले में कोई कदम उठाएंगी, मगर ये सब कुछ इतना जल्द होगा वो सोच भी नहीं सकती थी। अगर आप ही के जुमले इसने खुद ना सुने होते तो ख़ुद को ही ये कहकर बहला लेती कि इसमें ज़याद की वालदा खुद इसी की रज़ा का हाथ होगा। मगर जब चची बेगम ने मुबारकबाद देने के बाद धीमे लहजे में कहा, इतना अच्छा लड़का था ज़याद, अरे तुमने ज़रश के लिए क्यों कोशिश नहीं की, तो बड़े इत्मीनान से बोली, नहीं चची बेगम, ज़याद और ज़रश के मिजाजों में बहुत फ़र्क है। ज़याद बहुत शौक़ चुलबुला है, जबकि अपनी ज़रश की तबीयत में हसासियत बहुत ज़्यादा है। इनका निबाह मुश्किल था। आंटी तो ख़ुद काफ़ी माइल थी, मैंने ज़याद का साथ दिया, वो समन में काफ़ी इंटरेस्टेड था। आप ही का जुमला था कि दो धारी तलवार, इसके अरमानों का। टुकड़े टुकड़े कर क्या, आंखें लहू रंग ख्वाबों की किरचियों से अटकर रह गईं। जाने वो रात इसने कैसे गुजारी थी। अलबत्ता सुबह रो रो के पापा से इजाज़त ली तो उन्होंने इसे नाइट कोच में बिठाकर पहली फ़्लाइट से पिंडी भेज दिया। पिंडी का मौसम अच्छा था या बुरा, इसके अंदर तो ख़िज़ाने डेरे डाले हुए थे। वो यहाँ सिर्फ अपना गम गलत करने आई थी। दर्द इस शिद्दत से बढ़ा था कि चारागरों के चेहरे भी दिल दुखाते महसूस हो रहे थे। सो इन सब से दूर चली आई, गो के आखिर तक सभी पूछ पूछ के हार गए कि इसने यूँ अचानक जाने की क्यों ठानी है। मगर इसके पास किसी के सवाल का जवाब नहीं था, सिवाय इस जुमले के मुझे खाला से मिलना है, उनके पास जाना है। क्योंकि वो बेचारी भी कई बार इसे बुला चुकी थी। तन्हाई से नबरत आज़मा वो अक्सर इसे याद करती रहती थी। सो पापा ने इजाज़त दे डाली। यूँ भी वो इतनी शिद्दत से रो रो कर इजाज़त मांग रही थी कि साद ने इसकी हिमायत की। इसके तो मास्टर्स के इम्तहान थे अगले हफ्ते, वो तो नहीं आ सका, अकेली ही चली आई, सबसे ज़िद करके कि अब किसी के हम सफ़री इसके लिए महज जहन का बोझ थी। दुख अपने ख्वाबों के टूटने से ज़्यादा आप ही के रवैये का था। कितनी आसानी से उन्होंने इसके दिल में बेहिसी का छुरा घोंप दिया था। क्यों थी आखिर वो ऐसी, क्या पुरखाश थी इन्हें इससे, किस बात का बदला लेती थी वो इससे। वो सोचती तो जहन सुलगने लगता था, आंखों से आंसू रवां हो जाते। खाला इसकी जल्द रंगत सख्त हैरतज़दा थी। कहाँ तो पूरे घर में जले पैर की बिल्ली बनी घर में घूमा करती थी और कहाँ अब घंटों एक ही जगह बैठी रहती। वो पूछती तो खाली खाली नज़रों से इन्हें देखती। कोई बात नहीं खाला, आपका वहम है, कहते हुए उठ जाती। अब उनसे अपनी माँ जाई की क्या शिकायत करती, और भला वो यकीन करती? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे यहाँ आए एक माह हो चला तो अम्मी पापा और फ़ायज़ा के डांट भरे फ़ोन आने लगे। सब वापसी का तकाजा कर रहे थे, मगर इसने कह दिया अपनी किताबें ले आई है, थर्ड ईयर के इम्तहानों पर भी वापस आएगी। फ़ायज़ा की ज़ुबानी से ज़याद की मंगनी का भी पता चला था। सब ने शिरकत की थी। इसके दिल में कोई चीज़ छन से टूट गई और इसकी बाज़गश्त इसने दिनों महसूस की। और शायद इसी बाज़गश्त की गूंज बहुत दिनों इसकी समातों का बोझ बनी रहती कि एक रोज़ जिब्रान का ख़त ना आ जाता। आई मिस यू ज़रश, प्लीज़ कम बैक। सादा से कागज़ पर बग़ैर किसी लंबे चौड़े अलकाब के जिब्रान की खूबसूरत राइटिंग में मोती बिखरे हुए थे और आखिर में लिखा, तुम्हारा जिब्रान। इसे बुरी तरह रुला किया। किस्मत की कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि जिसे हम चाहते हैं वो हमें अहमियत नहीं देता, और जो हमें चाहते हैं हम उनकी कदर नहीं कर पाते। जिब्रान का दुख वो महसूस कर सकती थी। अपने प्यारों से दूर रहना किस कदर मुश्किल था। वो लौट आई थी। इसके दिल पर जैसे मनो बोझ आ गिरा। वो इसका सामना करने से गुरेज कर रही थी जब ये फ़ौरन ऊपर चली आई। आप ही आजकल हॉस्पिटल में थी, किसी भी वक्त बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी, सो वो नहीं आ सकी थी, और इसमें इतनी सख्त नहीं थी कि वो उनकी तरफ चली जाती। ऐसा भी कब तक होता, इसने बहुत टाला, मगर एक रोज़ अम्मी इसे अपने साथ ले ही गई। आप ही एक मुन्नी सी गुड़िया को गोद में लिए बैठी थी। इसे एकदम सारी बातें याद दिला गई, मगर जो ही इसकी नज़र गुड़िया पर पड़ी, इसके सारे शिकवे जैसे झांकी मानिंद बैठ गए। हर शख्स अपने ज़र्फ़ के मुताबिक फ़ैसला करता है, सो मैं भी आप ही को माफ़ करती हूँ। गुड़िया को गोद में भरते इसने फ़राख दिली से सोचा और बच्ची के माथे पर मोहब्बत की निशानी सब्त करती।
तकदीर का चक्कर भी अजीब है, इंसान को अपने रास्ते पर चलाती रहती है, ख्वाह इसकी मंशा हो ख्वाह ना हो। वो भी इम्तहानों में मसरूफ़ होकर हर बात भुलाने की सही करने लगी। जिब्रान ने अब तक इससे कुछ नहीं कहा था, कोई सवाल नहीं किया था, मगर इसके मुंतज़िर इस्तफ़हामी कैफियत से लबरेज़ निगाहें अभी भी वारफ्तगी से इसकी जानिब उठती और जवाब में सर्द नहरी पाकर यूं ही लौट जाती। इस खामोशी तकल्लुम का किसी को अंदाज़ा न था कि इम्तहानों के बाद फ़ाइज़ा की शादी तय पा गई। इसकी गैर मौजूदगी में रिश्ता तय पा गया था, लिहाजा अब सिर्फ शादी करना थी। इसे पता चला तो फ़ाइज़ा से खूब लड़ी। इसने कहकर तुम्हारी यही सज़ा है, इसका एहतजाज दबा दिया। वो शादी की मसरूफ़ियात में बड़ी तनदही से मगन थी कि ज़ैयाद की मंगनी टूटने की खबर इसके दिल के समंदर में एक बार फिर तूफ़ान उठा गई। और ये तूफ़ान इस वक्त और शिद्दत अख्तियार कर गया जब आप ही इसके लिए ज़ैयाद का रिश्ता लेकर आईं। समन से नज़रियाती इख्तलाफात की बिना पर वो दोनों बखुशी ये रिश्ता तोड़ बैठे थे। उफ़ मेरे खुदा, अभी तो ये इम्तहान बाकी है। इसने सुना तो मुट्ठियाँ भींच कर बमुश्किल ख़ुद को कंट्रोल कर सकी। मुझे साफ़ इनकार है फ़ाइज़ा, जाकर कह दो अम्मी से मुझे आप ही का ये एहसान हरगिज़ कबूल नहीं। नफ़रत है मुझे रद्द की हुई चीज़ों से, ठुकराई हुई अशिया से। वो हिस्ट्रियाई अंदाज में चीख पड़ी तो फ़ाइज़ा समेत घर का हर फर्द शश्ता रह गया। अम्मी ने इसे लाख समझाया मगर इसकी ना हाँ में ना बदली। आप ही इसके अरमानों की रगों का आखिरी खून तक निचोड़ना चाहती थी, सो वह ऐसा कर गुजरी। कभी कभी वो सोचती तो यकीन ना आता वो इसकी माँ जाई थी, मगर कैसी दुश्मनी थी इन्हें। फ़ैसला तो इसने कर दिया, मगर इसके अंदर जैसे कोई फांसी अटक गई। दिल तो बहरहाल दिल था ना, धड़कता हुआ मचलता हुआ, मगर आप ही की खुदगर्जी ने इसे इस हद तक अजियत पसंद संग दिल बना दिया था कि इसने अपने दिल की भी ना सुनी। वो खुश थी कि इसकी अना सर उठाए। इसकी पुरमलाल के स्लेब बनकर गड़ी हुई थी। शिकस्ते दिल ने रुलाया है बारहा, लेकिन मेरी अना मेरे दिल की लगी से जीत गई। ज़ैयाद ना तो पहले इसका था और ना ही अब इसके लिए कोई जज्बा था इसके दिल में। जब भी इसके इनकार पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ, अलबत्ता आप ही ने नाराज़गी के तौर पर इस तरफ आना बंद कर दिया। घर में फ़ाइज़ा की शादी की तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी थीं। सब ने ही उन्हें मनाने की सही की, मगर उनकी ज़िद थी ज़रश हाँ कहे, और वह मर कर भी इस बात पे तैयार नहीं थी। दूसरी जानिब जिब्रान ने दिल के तकाज़ों से हार कर चची बेगम को दिल की बात बताने की ठान ली। इससे पहले वो इससे पूछना चाहता था और इसके लिए किसी मौजू मौका के इंतज़ार में था। कुदरत ने ये चांस खुद फ्राहम कर दिया। उस रोज़ चची बेगम काम की ज़्यादती पर झल्लाती हुई जिब्रान को सख्त सुस्त सुना रही थी कि वो चली आई। जिब्रान खामोशी से बैठा उनकी बातें सुन रहा था। वो अंदर आई तो चची बेगम चुप हो गई। खैरियत, क्या हुआ? इसने झिझक कर सवाल किया। इसकी आमद पर चची बेगम का एकदम खामोश हो जाना और जिब्रान की नज़रों का इस पर पड़ जाना इसे बौखला सा गया। होना क्या? कितनी बार इस लड़के से कहा है कि शादी के लिए हाँ कहते, मैं बहू ले आऊँ, कुछ मुझे भी आराम मिले। जाने इसने दिल में क्या ठान रखी है, हमेशा इनकार कर देता है। चची बेगम दर हकीकत इसी बात से सख्त खौफज़दा थी कि फ़ाइज़ा के बाद घर का क्या बनेगा। ज़रश के लिए भी एक रिश्ते आए हुए थे। उनकी रज़ा तो ज़रश के लिए थी, मगर वो राज़ी होगा तब ना। उनकी बात पर बेख्तियार नज़रें चुरा गई। जिब्रान के सवाल करती निगाहें उसी पे मरकूज़ थीं। तुम ही इसे समझाओ बेटा, मैं तो हार गई। कपड़े उठाकर ज़े छोती बाहर चली गई। तुम मुझको और मैं तुझको समझाऊं क्या? दिल दीवाना तेरा भी है मेरा भी। चची बेगम के जाते जिब्रान इस्तेहज़ाई अंदाज में बड़े जज्ब से शेर पढ़ता इसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। शाह की नज़रों में बहुत से रत जगह अपनी अज़ियतों की दास्तान सुना रहे थे। नादिम से होकर पलटी और जाने लगी थी कि जिब्रान ने इसका हाथ पकड़ के इसे रोक लिया। वो पलटी तो सवालिया निशान बनी हुई थी। जाने से पहले इतना तो बता दो कि मैं अम्मी को क्या जवाब दूं ज़रश। जिब्रान का भारी गंभीर लहजा तासुब से भरा था। इसकी सांसें मद्धम पड़ने लगीं। तुमसे मैंने वादा किया था ना कि एक रोज़ तुम्हें उस लड़की से ज़रूर मिलवाऊंगा जिसे मैं चाहता हूँ, तो वो ये है। ज़रश को आईने के सामने खड़ा करते इसने कहा तो वो बावजूद इसके कि सब पहले से जानती थी, चंद सानिये के लिए साकी तो शश्ता रह गई। अब बोलो, तुम्हारा क्या जवाब है? वो पूछ रहा था और वो इसकी चाहत पर मुतहय्यर सी खड़ी थी। इसे लगा जैसे इसकी गोयाई इसका साथ छोड़ गई है। एक लम्हे में इसने जाने क्या कुछ सोच डाला। चाहे जाने की अज़ली ख्वाहिश तो आज भी इसके दिल में मौजूद थी। इसने ज़ैयाद को चाहा था, मगर वो इसके लिए ऐसा कोई जज्बा अपने दिल में नहीं रखता था, और अब तो इसके दिल से भी इसका ख्याल रफ्ता रफ्ता मिटता जा रहा था। जिसे तुम चाहते हो इसके पीछे ना दौड़ो, बल्कि इसकी हमसफ़री अख्तियार करो जो तुम्हें चाहता है।
इसे कभी का पढ़ा हुआ ये जुमला याद आए, बेअख्तियार आंखें बंद करके लब भींच लिए। आई मिस यू ज़रश, प्लीज़ कम बैक। ये फ़िक्रा जहन में उधम मचाने लगा। ओ खुदाया, मैं क्या करूं? दिल ने बड़ी शिद्दत से रब्बे अज़ीम को पुकारा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता ज़रश, अब मुझे तुम्हारा वाज़ेह जवाब चाहिए। तुम सोच लो, मेरी तरफ से अपने फ़ैसले में आज़ाद हो। तुम्हारी खुशी खा इनकार में हो या इकरार में, मुझे हर हाल में मुकद्दम है। इसे सोचों के अथाह समंदर में डूबते लम्बे लम्बे भरते डग भरते छोड़कर वो डग भरता कमरा छोड़ गया। ओह खुदाया, वो बेबसी से बेड पर गिरकर रोने लगी थी। फैसले की किस कदर भारी स्लेब लाद दी थी जिब्रान ने इसके शल होते थके मांदे कछानों पर। वो सोच सोच कर परेशान हुई जा रही थी। जहनों दिल में सवालों का एक हजूम था। क्या वो इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत से नज़र चुरा सकेगी? किसी के किए की सज़ा किसी और को दे सकेगी? पुरखुलूस साथी का प्यार ठुकरा सकेगी? नहीं नहीं। इसका दिल मानने वैशी पुकार उठा तो वो तकिए पर सर पटक कर बेअख्तियार सिसकियाँ भरने लगी। मैं मोहब्बत को ठुकराने का गुनाह नहीं कर सकती, यह सच है, और ये भी हकीकत है जिब्रान कि मैंने तुमसे हार मानी। आंसू साफ करते हुए इसने फैसला कुन अंदाज में सोचा और तकिए से सर उठा लिया। नज़र बेअख्तियार तकिया खिसकने पर अपनी उस तस्वीर पे जा रुकी जो इसे जिब्रान के दिल का राज दे गई थी। जज्बों की शिद्दत से मगलूब अल्फाज यूं ही जगमगा रहे थे। इसने बेसाख्ता जिब्रान की तहरीर पर सर टिका दिया। हस्बे आदत ऐन इसी लम्हे फ़ायज़ा ने जिब्रान समेत अंदर एंट्री दी। चंद सानिये तो दोनों को ही समझने में लगे कि फ़ैसले की नोयत क्या है, और जब मस्बत होने का एहसास हुआ तो फ़ायज़ा ने हुर्रा का नारा मार दिया। वह हड़बड़ा के उठी। सामने ही जिब्रान मसरूर शादा आँखों में मोहब्बत की फातहाना चमक लिए अलवई रोशनियाँ बखेरता खड़ा था। इसे एक लम्हे के लिए नज़रें मिलाना दुश्वार हो गया। पलकें आप ही आप झुक गईं और दिल बेहंगम अंदाज में धड़क उठा। बस भाई, अब आपको जवाब मिल गया, लिहाजा फ़ौरन यहाँ से 9-2-11 हो जाएं। फ़ायज़ा खुशी से चहकती से गले से लगाते हुए बोली तो इसके अंदर ढेरों सुकून उतर है। वो क्यों भाई? सीने पर बाजू लपेटते हुए इसने बेहद तमानियत से शौक़ लहजे में पूछा। मिठाई लेकर आइए भाई, आज कितनी अच्छी खबर सुनने को मिली है। फ़ायज़ा की मुसर्रतों का ठिकाना न था। वह ख़ुद भी बेहद खुशी सुकून महसूस कर रही थी। शर्मा कर मज़ीद फ़ायज़ा की बाहों में सिमट गई। ज़रूर, एक शर्त पर, तो मुझे 2 मिनट ज़रज से बात तो करने दो, इसने बड़ी चाह से कहा। हरगिज़ नहीं, अब जो कुछ भी कहना हो मिठाई खिलाने बल्कि छुआरे खिलाने के बाद ही कहिएगा। हमेशा इसने जिब्रान का साथ दिया था, आज वो इसकी हामी थी। इसे पुरानी बहुत सारी बातें याद आईं तो मुस्कुराहट आप या लबों का हिसार कर गई। देख लीजिए, ज़रश भी मेरी बात से मुत्तफ़िक है, जब भी मुस्कुरा रही है। फ़ायज़ा ने इसका चेहरा ऊंचा किया। रियली? जिब्रान ने कतरे झुककर इसकी आंखों में झांका तो इसकी शर्मीली सी हंसी फ़ज़ा में गूंजकर इसकी खुशियों की गवाह बन गई। ये नावल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। फिर से आऊँगी किसी बहुत ही खूबसूरत से नावल के साथ। इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।